ओके। तो अब मैं ना एक बहुत हाई लेवल आप लोगों को एक ओवरव्यू देने लगा हूँ कि भाई ओलैप और ओएलटीपी में फ़र्क क्या है और 2 सिस्टम ज़रूरी क्यों है? अच्छा, आप यूँ सोचिए कि हमारे पास एक रिटेल शॉप है, बल्कि आप कह लें कि नेशनल लेवल की एक रिटेल शॉप है जिसके 50 आउटलेट्स हैं, ठीक है? अब 50 आउटलेट्स के ऊपर डाटा जो है वो एंटर हो रहा होता है। हर वक़्त पॉज़ टिल के अंदर जो है ना डाटा फेंक रहा है। यानी कि उसका डीबी जो है ना, हर वक़्त कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। अगर मैं उसी डीबी के ऊपर एनालिसिस भी शुरू कर दूँ, तो वो डीबी जो है ना, वो वो चोक हो जाएगा। वो जो है बड़ी-बड़ी क्वेरीज़ नहीं सँभाल सकेगा। इसीलिए हमें 2 सिस्टम सेपरेट चाहिए होते हैं। एक एनालिसिस के लिए चाहिए होता है और एक ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है। तो वो एनालिसिस के लिए जो सिस्टम चाहिए होता है, वो बेसिकली ट्रांज़ैक्शन सिस्टम से ही निकाल के बनाया जाता है, वो उसकी कॉपी होती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन हमने ये पढ़ना है कि भई सेम कॉपी हमने ओएलटीपी से किस तरह बनानी है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का रखना है ताकि उसके ऊपर एफिशिएंट क्यूरी ली जा सके, ठीक है? और उससे टाइमली रिजल्ट्स लिए जाए। तो ताहिर, आई वुड लव इफ यू कैन गो थ्रू द फेज़ 2 कंटेंट और इनके साथ कुछ ना कुछ शेयर करें। आई वुड बी अवेलेबल इन द बैकग्राउंड, ओके? थैंक यू। Okay, sure. Thank you, Dilbhai. So guys, I'm your new instructor. I will be delivering phase 2 week 3 to 4 BI and OLAP. So in this module, we will be learning few of the important topics here, which are introduction to data warehousing, data modeling star schema and snowflake schema. Particularly, we will be discussing here star and snowflake schema, irrespective of the data warehouse architecture. So here we will be learning ETL and ELT. I will let you know the difference between ETL and ELT, extract, transform, and load. So we have a tool SSIS. It is called SSIS. It is basically a tool of Microsoft BI Stack, which actually provides us the ability uh, to ETL our data. So finally, we will came to the data visualization. Here I have a tool, Power BI. It's also a Microsoft BI stack. It belongs to the Microsoft BI stack, Power BI, and I love to work on Power BI, and we will be doing a great job on working on learning Power BI. So the last and not the least, SQL Server 2019 end-to-end OLAP project. So this is the whole content we will be learning in this session, in all the sessions which are coming in next 2 weeks. So first of all, I would like to listen from you guys that actually what you had learned, as we have already discussed what is OLTP. So difference between OLTP and OLAP, and why can't we build intelligence on OLTP? So I think we have discussed a little bit about what is OLTP and difference between OLTP and OLAP. So here I have a question for you guys. Why can't we build intelligence on OLTP? So I think this is also a question which we already had discussed a little bit. So for you guys, I would like to I would like to let you know that what actually is the difference between OLTP and OLAP. The difference between OLTP and OLAP, I have put it in slides in next slide, so we will be discussing it in detail. But the third point, why can't we build intelligence on OLTP? I would like to, answer this question. Basically, this was for you guys, but I think we have enough chit chat before that, before this. So I would like to let you know that what is the now, why we we can't build intelligence on OLTP. So as we already discussed that there is some sort of uh, transactions which are happening on OLTP. OLTP is a database which is basically used for some sort of application, some sort of ERP system, some sort of it is basically CRUD based system which is used to all the time to you know to handle the transactions of some particular app or some particular system.
So it is basically a database which is handling the transaction of any particular system. So the reason why we can't build intelligence on OLTP is that it is not only because the system is more write oriented and not for read purposes. The one reason is that the schema which in which we design OLTP, it is not intelligence. It is not favor in the terms of intelligence. If we want to build intelligence on OLTP, it will we will be facing a lot of difficulties to visualize our data. So one issue why can't we build intelligence on OLTP is that because of schema. So the schema of OLTP is is just optimized because is just optimized for transaction purposes and not for not for the intelligence purposes. So the basic purpose of OLTP is to hold the system data. So it is basically some sort of a log. So I have put few of the things. I have make some comparison OLTP versus OLAP. So here I have some few of the parameters OLTP and OLAP. एक्सक्यूज में आप प्रेजेंटेशन का शेयर करें तो कुछ आ नहीं रहा स्क्रीन पे. I think I forgot to share the presentation. Let me do this. When my screen is visible, kindly let me know. Yes, now. Yes. So here we have, OLTP versus OLAP, uh, some sort of comparison I have made here. And here the first point is I have put it in parameter, the parameter which we are discussing here, and the OLTP and OLAP. So the purpose of here we have first parameter, the purpose why we build OLTP and OLAP. Basically, OLTP is designed to record the transaction as we already discussed it many times. But here we have the importance that OLAP is designed to analyze the data. So basically OLAP is designed for analytical purposes. So that is a parallel system which we have already discussed. It has another schema, a different schema on which we build OLAP. It is totally different from OLTP. So OLTP is designed to record the transactions and OLAP is designed to analyze the data. So the next point is usage, where we use OLTP and OLAP. So these things are pretty much self explanatory here. I have put them. The databases usage of the OLTP as a database helps to perform fundamental operations for your business. If you have some sort of point of sale system, you have some ERP attached with it, you have some sort of any type of transaction, you have some application, so you have some sort of a transaction system which your transactions are going to be performed. That can be a relational, non-relational, structured. The data can be structured, non-structured, or semi-structured. The database can be relational or whatever the databases are, the structured relational databases and the other one. So the OLAP is basically used for data warehouse. This is called data warehouse, allows you to analyze your business. This basically, OLAP basically allows you to analyze your business. You create a data warehouse by following some particular schema, and this will helps you to build intelligence related to your business. So basically tables and joins, what is the difference between tables and joins? Tables and joins in OLTP of databases are complex and they are normalized. As we already learned about this, that tables and joins of database are complex and they are normalized. The data is normalized in OLTP. So the similar, in the comparison of OLTP, table and joins are simple in data warehouse because they are denormalized. The data is denormalized in dimensions
and we have fact tables. We will study this later. So you have to just only focus the comparison sort of things here. Orientation is an application oriented collection of data. इसमें OLTP में is basically application oriented data होता है इसमें, जो कि normalized form में होता है, और उसमें relationships, primary keys, foreign keys, as you already understood, learned that stuff. So in OLAP, it is subject oriented collection of data. So subject oriented word here, it has some sort of visibility here. Subject oriented. So we will be discussing this later, that what is subject oriented and what is application oriented. Application oriented, you have already understood this thing and learned this thing about. The next thing we will be learning here is subject oriented. We will be discussing it in later slides. So here are few more parameters. Storage limit, generally limited to a single application. It is not the storage, it is not the limit, storage limit of in the terms of database size. Basically, you have one application which is based on some sort of OLTP, and it is limited to one application, maybe two application. But in OLAP, you can store, you can bring data from multiple sources. You have no any sort of application specific limit. You can bring data from CSVs, you can bring data from some relational database management system, you can bring data from MariaDB, you can bring data from Oracle, you can bring data from file system, any flat file, and you can bring data from where you want. Is in the world, if I say, there are lot of data sources from where you can bring the data, combine it, and transform it, dump it into your data warehouse, so that it could be prepared, it could be presented for data visualization, it could be available for data visualization and data analytics. So basically OLAP, अब आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि what is OLAP, what OLAP is specifically built for. OLAP का पर्पस क्या है, क्यों हम OLAP पे जाते हैं, OLTP पे हम क्यों इंटेलिजेंस जो है ना वो बिल्ड नहीं करते, या नहीं करनी चाहिए, या नहीं उसको जो है ना उसकी लिमिटेशंस जो होती हैं. Availability means data is available in real time. In CRUD system, in OLTP, you have all the time data available in real time. Real time means if someone is using Facebook and someone made just created a post on Facebook, and you guys go there and you just comment on that particular post. So at which point you submit your comment, it is available in Facebook database somewhere behind where it is stored. So this transaction particularly you have performed, it is available in real time in Facebook's database. So that can be some sort of cloud database, whatever is the database, regardless of the database. So it is available, your transaction in real time. But in OLAP, data is refreshed from source system as when needed. मतलब इसका ये है कि जब आपको, for example, if you are performing analytics, some sort of analytics, और कुछ इस तरह की analytics होती हैं जो कि आपको means near real time चाहिए होती हैं. कुछ इस तरह की analytics होती हैं जो कि आपको month level के ऊपर चाहिए होती हैं. Means अगर आप current month में चल रहे हैं तो आपको previous month की analysis चाहिए. Like financials of किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं, आप जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वो आपकी मंथ -1 के ऊपर चल रही होती है. यानी करंट मंथ की आप कभी भी नहीं देख सकते कि आपके एक्सपेंसेस क्या थे, आपका रेवेन्यू कितना था, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, ठीक है, आपका टैक्सेस कितने थे, ठीक है, आपका बजट कितना था. ये सारी चीज़ें आप मंथ -1 के ऊपर देख रहे होते हैं. तो अगर इस तरह का कोई डाटा है जिसमें आपका क्या है कि फाइनेंशियल एनालिटिक्स आपने प्रोवाइड करनी है, तो आपका हमेशा मंथ -1 के ऊपर चल रहा होगा. तो डाटा हम हमेशा एक मंथ पीछे का रिफ्रेश कर रहे होंगे. अगर हमने करंट मंथ का डाटा दिखाना है तो वो तो हम नेक्स्ट मंथ में जाके दिखाएंगे, तो हम एक मंथ पीछे चल रहे होते हैं. सो आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सो OLTP is real time. Whenever the transaction, specific transaction, whenever you go and went to the ATM and you just put your card and draw some money,
that particular transaction is reflected in real time in uh, bank's database. So, but if you are, performing some analytics, so maybe for banks you are working for day minus one. They want to see all their, data, that if they are, building some sort of intelligence in which they are, some C level or some higher level management want to see that how much money we have, how much money we have to pay to the other banks in terms of, exchange. So they have, if they want to see some sort of some this sort of, intelligence, they are maybe working on day minus one. So the data is in data warehouse is on day minus one. So the OLTP is real time. The OLAP is when we need, we refresh the data. We set the frequency of data refresh on the intervals when we need it. So the techniques are, for OLTP, it captures the data of some particular application, and for OLAP, it is always discussed, already discussed, analyzed data. So the data type is data stored, for OLTP. Data stored in the database is up to data is up to date, while in OLAP, current and historical data is stored in data warehouse may not be up to date. So it is already, discussed that it will not be up to date. Maybe we are working on day minus one, week minus one, month minus one. So that will not, someone on his mic. So the third, on third page we are here. The parameter is storage of data. For OLTP, flat relational approach method is used for data storage. Flat relational approach method is used. What is flat relational approach? That is the normalization, data normalization, which we already discussed. That we normalize the data, we build the relationship based on the keys, primary keys, foreign keys, and then we store the data. So for OLAP, we have data warehouse use dimensional and normalized approach for the data structure. So like example is star and snowflake schema. So these basically are the two schemas. We have a lot of schemas like star schema, snowflake schema, galaxy schema. We have another schemas, but we will be focusing on star and snowflake particularly in this session. So that's why I put the star and snowflake schema here in the slides. So query type is simple transaction queries are used, and complex queries are used for analysis purposes. In OLTP, we use simple queries. Queries are simples, schema is complex. In OLAP, queries are complex, schema is simple. Understanding the analogy? Got it. Query type, simple queries, simple transaction queries are used, complex queries are used for analysis. I think this is already, this point is being duplicated. So this is all we have, the OLTP versus OLAP analysis. So I think you guys now pretty much aware of what is OLTP, what is OLAP, and why we go from OLTP to OLAP. Why we need it for intelligence purposes. OLTP is optimized for CRUD operations. OLAP is optimized for analytical operations. Here I have put some sort of some sort of uh, a question, data as an asset. So what is this data as an asset? Basically data, like any asset, like if we talk about money, some companies say money is our asset. Every company say money is our asset. Some company says resources are our asset. So data is also an asset for all the companies which are data oriented. Like how that data is an asset. Basically data, everything which is an asset, it returns you a value. It boosts your business. Okay, when you put money into your business, so what effect it will create? It will boost your business, expand your business. So data is the same sort of asset. When you build analysis on particular data, and that data gives you the analysis of your
insights of your organization, that what is happening, where the loss are occurring, where the benefits are happening. So you have each and everything, uh, you have information, you have knowledge related to your business. So basically you are well aware of your business, that where we are in loss, where we are in, for example, there is some sort of retail channel, retail company. He has multiple stores in all over the country, like we discussed in Pakistan. So they build some analysis on the base of their data, and they came to know that we have a stores, all the stores in Lahore are performing good. So what did they came to know, that the Lahori peoples are most uh, you know buying peoples. They love to shopping, they went to the malls and shop a lot. So they came to know that Multan and the stores present in Multan, they are not doing good in the terms of sales. So they came to know that this region, particular Multan region, the peoples are not they are not good to shop. They don't want to, they don't like shopping much. So there may be some sort of other factors. So data is particularly is an asset. When we talk about data, data is an asset, and it is an like a critical asset for companies, the companies who are well aware of the data analysis sort of things. And mostly companies are in this era, they are well aware of this term, that data is our asset. So they come to the technology guys, technology companies, and they said that you build us analysis on that particular data, so that we came out some sort of insights of our business. So they take informed decisions. So the data is an asset. So I have put this single sentence here, to know you people, that the data is an asset of for any company. So here uh, हम इसमें जब जैसे हम इसमें आ रहे हैं, तो बिग डाटा को हम नहीं भूल सकते. बेसिकली हमारी स्टोरी शुरू हुई थी फ्रॉम डाटा. वी लर्न दैट व्हाट इज डाटा, एंड देन वी केम अप विद OLTP एंड OLAP. सो इसमें कहीं ना कहीं बिग डाटा भी आपका इन्वॉल्व है. बिग डाटा बेसिकली आपका वो डाटा है जो कि बहुत बड़ा है. यानी OLAP, आप OLTP, अगर आपका बहुत छोटा सिस्टम है और आपके चंद स्टोर्स हैं और आपको उसके ऊपर OLTP बना हुआ, तो कहीं ना कहीं आप उस पे OLAP पे नहीं जाने की कोशिश करेंगे. आप कहेंगे यार इसी OLTP को किसी तरीके से या किसी ऐसे टूल में डाटा एक्सट्रैक्ट करके इसी के ऊपर रिपोर्टिंग कर लें. तो अगर हम बात करें OLAP की या डाटा वेयर हाउस की, तो कहीं ना कहीं उसमें बिग डाटा इन्वॉल्व है. सो that's why I put some slides of big data here. So we are discussing big data here as well. So data basically contains, here the definition of big data is data that contains greater variety arriving in increasing velocity, volume, and the more velocity. Okay. Big data की definition ये है, बहुत बड़ा डाटा, ऐसा डाटा जो कि डिफरेंट वैरायटी में, मींस डिफरेंट सोर्सेज से, एक्सेल से आ रहा होगा, आपका OLTP सिस्टम से आ रहा होगा, आपका किसी MongoDB से आ सकता है, आपका किसी और MariaDB से आ सकता है, आपका एक सिस्टम Oracle के ऊपर चल रहा है, वहां से आपने डाटा फैच कर लिया. तो आपका डाटा बहुत सारी वैरायटी से आ रहा है. ठीक है. और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आ रहा है और बहुत स्पीड में आ रहा है. स्पीड का मतलब ये है कि आप समझ लें कि स्पीड या वेलोसिटी, हम कहते हैं कि जब OLAP हम बिल्ड करते हैं, तो हम अपनी जो स्केड्यूल रिफ्रेशेस हैं, जिस जिस फ्रीक्वेंसी में हम डाटा को फेच करते हैं इन सिस्टम से, दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी. कि हम उसको अगर हम मंथ बेस के ऊपर हैं तो हमारी वेलोसिटी कम होगी, अगर हम D-1 में तो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी डाटा लेकर आने की. तो here few statistics I have presented, few of the statistics in chart. ये जो फिगर्स हैं 2, 5, 6.5 और नीचे ईयर का एक जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर है, बेसिकली ये जीटा बाइट्स में है आपके डाटा. ये एक वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक एक 2010 से 2025 तक दुनिया, पूरी दुनिया एस्टिमेटेड कितनी जीटा बाइट्स ऑफ डाटा प्रोड्यूस कर रही होगी. सो वो सारा इस एक चार्ट में हमने दिया हुआ है. 2010 में 2 जीटा बाइट्स, और 1 जीटा बाइट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 12 GB. ये एक 1 जीटा बाइट होती है. ठीक है. वो आपको पता होगा मेगाबाइट, गीगाबाइट,
MB, GB. So this is basically a unit to measure big data, terabytes, and then 1 zettabyte is 1 multiplied 10 is to the 12, 10 is to the power 12 GB. And this is the chart which is represent the data is growing, means the big data is growing. 2025 तक estimated the world will be producing 181 zettabyte of data. So that is pretty much huge data. अब बिग डाटा को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे या बिग डाटा को बिग डाटा की हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 वीज हैं. बेसिकली ये 3 वीज थे पहले, फिर 5 वीज हो गए और रिसेंटली 8 वीज 8 वीज चल रहे हैं. सो आई हैव मेड द विन विन सिचुएशन 5 वीज. वी आर डिस्कसिंग 5 वीज हियर, जो कि किसी भी बिग डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 वीज को समझना बहुत जरूरी है. वॉल्यूम ऑफ डाटा, velocity of data, variety of data, veracity of data and value of data. डाटा का वॉल्यूम कितना है, डाटा की वेलोसिटी कितनी है, डाटा की कितनी वैरायटी का डाटा हमारे पास मौजूद है, वेलोसिटी हमारे पास डाटा की क्या है, एंड देन अगेन द वैल्यू, वैल्यू क्या डाटा हमें रिटर्न कर रहा है. सो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. वॉल्यूम जो है हमारे पास, दैट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्टेड, कि हमने कितना डाटा जो है ना वो कलेक्ट किया है हमारे डाटा वेयर हाउस के ऊपर. ये आगे चल के हम डाटा वेयर हाउस को पढ़ेंगे. ये बिग डाटा की जो चीज़ें हैं ये हम क्लियर करने के बाद ना हम फिर डाटा वेयर हाउसिंग के ऊपर आएंगे कि एक्चुअल में डाटा वेयर हाउसिंग क्या है. If the data is collected in large amount, it can be considered as big data, otherwise it will not be a big data. अगर data is considerable amount में है, लार्ज वॉल्यूम में है और डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, तो उसको एक कंसीडर करेंगे बिग डाटा. और अगर, क्योंकि पहले ये डाटा था, हमने इसको डाटा पढ़ा, फिर OLTP ट्रांजैक्शनल सिस्टम पढ़ा, अब हम बिग डाटा पे आ गए हैं कि डाटा अब ग्रो कर रहा है. पिक्चर क्लियर हो रही है? पहले डाटा था, फिर ट्रांजैक्शनल सिस्टम पढ़ा, अच्छा डाटा लॉग कहाँ हो रहा है. अब हम पढ़ रहे हैं कि डाटा ग्रो कैसे कर रहा है. फिर हम इस ग्रोइंग डाटा के ऊपर आएंगे कि डाटा की एनालिसिस क्यों ज़रूरी है और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और वेयर हाउस कैसे बिल्ड करते हैं, और ये सारी चीज़ें इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे. गॉट इट? ओके. So if the data is in large amount, it can be considered as big data. Otherwise, it will not, fulfill the big data sort of big data, criteria. So the second thing is velocity. How quickly data is data generate कितनी जल्दी हो रहा है किसी भी सिस्टम में. फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक ERP सिस्टम के साथ, एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो जिनका एक ERP सिस्टम लगा हुआ है. ठीक है, उस ERP सिस्टम में डाटा कितनी जल्दी क्रिएट, उनका एक शॉपर वैल्यू का सिस्टम है, उनका एक ऑनलाइन का एक सेल्स चैनल है जहाँ पे डाटा जहाँ पे वो अपनी सेल्स करते हैं ऑनलाइन. ठीक है, वहाँ से डाटा जनरेट हो रहा है. उनका एक कॉल सेंटर है जहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो कॉल सेंटर से चीज़ें सेल करते हैं, वहाँ से डाटा जनरेट हो रहा है. सो बेसिकली वेलोसिटी जो है वो किसी भी डाटा की क्या करती है, वो मेंशन करती है कि डाटा जनरेट कितनी जल्दी हो रहा है और डाटा मूव कितनी जल्दी हो रहा है. मूव से मुराद ये है कि जब हम डाटा को OLTP सिस्टम से OLAP के ऊपर लेके आएंगे. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली known as the moving of that particular data. Companies need that their data to flow quickly. Companies चाहती हैं कि एनालिसिस पर्पसेस के लिए उनका डाटा जो है, चाहे वो बेसिकली उनके OLTP सिस्टम के ऊपर हो या उनके OLTP से OLAP के ऊपर लेके आने की बात हो, तो कंपनी चाहती है कि उनका डाटा क्विकली मूव हो, नेटवर्क डिलेज ना हो. अगर आप एनालिसिस दे रहे हैं तो कंपनीज वांट कि उनका रियल टाइम एनालिसिस हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता. आपका मिनिमम 3-4 आवर्स का एक गैप होता है. अगर उससे ज़्यादा जाए तो हम वैसे बेसिकली स्टैंडर्ड जो एनालिसिस पर्पसेस के लिए जो हम स्टैंडर्ड रिकमेंड करते हैं वो D-1 के ऊपर रिकमेंड करते हैं कि जी D-1 हमेशा आप एक गैप रखें. आप अगर आज देख रहे हैं अपने एनालिसिस, तो आप D-1 की चीज़ें देखें, क्योंकि आज आपके ऑपरेशंस करंट डे के ऊपर चल रहे हैं. यू कांट से कि 3 घंटे बाद पहले मेरी ये सिचुएशन थी और 3 घंटे बाद मेरी क्या सिचुएशन होगी, मैं कहाँ पे होऊंगा, मेरे स्टॉक्स कहाँ पे होंगे, मेरी सेल्स क्या होंगी, मेरी इन्वेंट्री की जो सप्लाई चेन की जो चीज़ें हैं वो कैसे चल रही होंगी. तो ये सारी चीज़ें आप D-1 के ऊपर, क्योंकि सारे ऑपरेशंस आपके क्लोज हो चुके होंगे D-1 के, कल के ऑपरेशंस क्लोज हो चुके होंगे, आपकी इन्वेंट्री फ्रीज हो चुकी होगी, आपकी सेल्स हो चुकी होंगी, आपके सप्लाई चेन के कोई ऑर्डर्स रिसीव होने होंगे, हो चुके होंगे, कोई आपने परचेज ऑर्डर दिए हैं वो आपके आपके जो है ना वो भी, तो वो जो चीज़ें कल की हैं वो लॉक हो चुकी होती है नॉर्मली. ठीक है, तो इसलिए हम D-1 ही
कहते हैं, कुछ ऐसी मेडिकल कंपनीज होती है जो कि कहती है कि हमें 3 घंटे के डिफरेंस है, लेकिन देयर विल बी अ डिले, आपको रियल टाइम डाटा कभी भी ओ लैब के ऊपर नहीं मिलता। गॉट इट? सो इट इज अवेलेबल फॉर नियर रियल टाइम एनालिटिक्स, इसको हम नियर रियल टाइम एनालिटिक्स कहते हैं। It should be available, data should be available in data warehouse in near real time. We can't present real time data to the in our reports because real time data आप कैसे, वो तो फिर OLTP के ऊपर जाएंगे, और OLTP के ऊपर हम रिकमेंड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए because that is not meant for queries, analytical queries। आपको वो पता है कि बहुत complex होती हैं, बहुत heavy queries होती हैं। So data flow sources can be machines, networks, smartphones और social media। कुछ भी हो सकता है इनमें से, नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, मशीन्स भी हो सकती हैं, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया। फॉर एग्जांपल द डाटा फॉर रिटेल सेक्टर नीड्स टू बी अवेलेबल एट D-1। ये मैंने नीचे पहले डाल दिया था कि D-1 के ऊपर रिटेल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें D-1 के ऊपर वी आर फाइन। अब वैरायटी ऑफ डाटा इज के variety of data refers to the delivery of data types and data sources. Diversity of data types and data sources. Diversity of data types. Structured data है, unstructured data है, semi-structured data है. Because when we are going to to build OLAP, we are not just working with the relational database. Always, we are not just working with. We have JSON files, we have flat files, we have CSVs, we have Excels, we have some sort of non-relational database which is which is recording some applications data. We have relational databases as well. So variety of data in relational databases, as I already mentioned, that we have multiple data systems. For example, a company has ERP system, SQL is behind that particular ERP system, and they have they have Oracle database as well, where they are putting some sort of inventory data there. So there are definitely a different variety of data, different sources, different data types. Okay, we have data, and if we go into the grain level in data types, we have uh, a textual data, we can have a numeric data. So this is also the type of data types. So in any case, data types is diverse, and same is the case with the data sources. Data sources are different. We are coming up with the different data sources, as I already told you that when we are building data warehouse, we are not meant to fetch the data from single source. That might be that might be possible कि वो एक single source ही हो, but data warehouse has a capacity to integrate it with multiple data sources when you perform the ETL stuff. So you have multiple data sources and you fetch the data, you transform the data, and you load the data into data warehouse so that it must be ready to in the presentable form. So the challenges in variety is data standardization. अब जब आपके पास different sources, different data types और different variety of data आता है तो आपके पास always data standardization का issue raise होता है कि आपने data standardize, data is not in the same format. रिलेशनल भी है, नॉन रिलेशनल भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है, ओके गॉट इट, स्ट्रक्चर्ड भी है और नॉन स्ट्रक्चर्ड भी है। तो जब इतनी वैरायटी ऑफ डाटा आ रहा है, उस वैरायटी ऑफ डाटा को जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करने बैठेंगे, जब हम अपनी टेबल्स को डिज़ाइन करने बैठेंगे, तो हम कैसे डाटा के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे? तो देयर ऑलवेज रेज अ क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कि अब स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे? तो दैट इज बेसिकली हमारे लिए जो है ना वो एक टास्क जो है ना वो एक एक क्रिटिकल चीज़ बन जाती है कि हम उसकी डाटा की स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे। इट कैन आल्सो इम्पैक्ट द नॉलेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अगर स्टैंडर्डाइजेशन डाटा की नहीं होगी तो ये इट विल ऑलवेज इम्पैक्ट द नॉलेज डिस्कवरी। नॉलेज डिस्कवरी को क्या करेगा? ये इम्पैक्ट करेगा क्योंकि आपने मॉडल का एक स्कीमा सेलेक्ट किया है, आपके पास वैरायटी ऑफ डाटाबेसेस, डाटा सोर्सेज हैं, आपने डाटा लेके आना है। अगर आपकी डाटा स्टैंडर्डाइजेशन ना हुई, then you are always gonna be suffer in a knowledge extraction portion, data visualization, जहाँ पे आपने क्लाइंट को बताना है कि you have these KPIs, your stores are performing a good or bad,
your inventory is performing in this way, you have these sorts of pattern, you have you know what it is called market basket analysis sort of things. If your data is not standardized, if your data is not in standard format, it is not in good format, how you can how you can consider yourself that you will extract the quality knowledge or quality type of information from that particular data. So you have to focus on the data standardization, and it is a challenge in big data warehousing. So it is the third V of variety, is the third V of big data. So it was the important portion. Big data has a role in data warehousing. So that's why I put this portion, so you guys have the familiarity with big data and the V's of big data, and have a clear understanding that how you can build a data warehouse and what are the things which are impacting that particular warehouse. So the next V is, the fourth V is veracity. It refers to the quality and accuracy of data. Data कितना accurate है, data की quality standards क्या हैं. Okay, gather data could have missing pieces, उसमें missing pieces हो सकते हैं, information missing हो सकती हैं, ठीक है, may be inaccurate or maybe not, may not be able to provide valuable insights. As उसमें missing pieces हैं. अब data है, data में for example we have एक column है category का, like एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है. उस इंफॉर्मेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हम कहते हैं कि प्रोडक्ट की हिरार्की स्टोर्ड है. प्रोडक्ट की हिरार्की होती है ना, लाइक प्रोडक्ट का वो किस जेंडर के लिए है, उसका ब्रांड कौन सा है, जेंडर कौन सा है, उसकी कलेक्शन कौन सी, क्लास कौन सी है, सब क्लास कौन सी है, ठीक है, किस सब क्लास का. तो वो ना एक प्रॉपर हिरार्की होती है ब्रांड्स की. ब्रांड की जो ये अगर अपैरल के ऊपर जाए ना, तो इनके प्रोडक्ट की प्रॉपर एक हिरार्की होती है, सेम इनके स्टोर्स की हिरार्की होती है. तो अगर उसमें जेंडर कहीं पे मिस हो, 100 प्रोडक्ट्स ऐसे उनके फॉर एग्जांपल 40,000 प्रोडक्ट्स हैं किसी एक अपैरल के, किसी एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें 500 प्रोडक्ट्स के आप समझें जेंडर की इंफॉर्मेशन मिस है, और वो चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे किस जेंडर की कितनी सेल्स हैं. कैन यू इमेजिन कि आप उसको सही तरह के एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, सब क्लास की इंफॉर्मेशन मिस है. तो हमेशा यहाँ पे यही चीज मेंशन की गई, गैदर डाटा कोड हैव मिसिंग पीसेस. उसमें मिसिंग पीसेस हो सकते हैं, मिसिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, may be inaccurate or may not be able to provide valuable insights. Veracity overall defines how much trust you can do in collected data. ये आपकी ओवरऑल डाटा की, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसकी किस चीज को मेंशन करती है, उसकी इस क्वालिटी ऑफ द जो डाटा है ना, कि उसको ये मेंशन करती है. समटाइम्स डाटा इज मेसी एंड कांट बी used for the knowledge discovery process. Data is so messy. If you had worked on some clients, so data is बहुत सारा डाटा जो है ना वो मेसी होता है. मेसी से मुराद ये कि डाटा अगर उनका मास्टर डाटा देखें या उनका उनका स्कीमा देखें, आप कहेंगे यार दे हैव मेस्ड अप विद द डाटा. किसी नॉन टेक्निकल बंदे ने बैठ के चीज़ें बनाई हैं और ही हैज़ नो आइडिया हाउ टू. और ये चीज़ें आपको हमेशा सफ़र करती हैं एनालिसिस, जब आप बिल्ड करने जाते हो तो आप इन चीज़ों की वजह से सफ़र करते हो. So large data can create more confusion than useful insights if it is not complete. अगर डाटा कंप्लीट नहीं होगा और डाटा लार्ज होगा तो ये आपको कंफ्यूजन ज़्यादा देगा इंस्टेड ऑफ यूजफुल इंसाइट्स. अगर आपको पता नहीं है कि उसको बनाना कैसे है, इसकी जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन उसको कैसे हैंडल करना है, डाटा स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करनी है, ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी, ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे, तो आप इस काबिल होंगे कि एक वैल्यूएबल इंसाइट क्लाइंट के आगे थ्रो कर सकें. सो द लास्ट एंड फिफ्थ वी ऑफ data, big data, is value. It refers to the value that collected data can provide. वही चीज आ गई कि अब हम आ गए वैल्यू के ऊपर. क्या अब ये क्वेश्चन कर रहा है फिफ्थ वी कि आपको जो कलेक्टेड डाटा है वो कितनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, कितना ज़्यादा यूजफुल इंसाइट्स आपको दे सकता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को वो डाटा है. एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कैन डू विद दिस कलेक्टेड डाटा. ये ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है कि अब जो हमने डाटा, बिग डाटा कलेक्ट कर लिया है, जो कि जिसका डेफिनेटली हम डाटा वेयर हाउस कहीं ना कहीं बनाएंगे आगे चल के, ये बताएगा कि जी अब ये कलेक्टेड डाटा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकती है, किस लेवल के ऊपर जाके इसको यूटिलाइज कर सकती है, कितना
इसमें से यूजफुल इंसाइट्स जो है ना वो निकाल सकती है. बीइंग एबल टू पुल वैल्यू फ्रॉम बिग डाटा इज द कोर रिक्वायरमेंट दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, फ्रॉम यू गाइस, फ्रॉम एनी डाटा एनालिस्ट. ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती हैं कि आप कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन उनके सामने थ्रो करते हो बाय स्टडिंग देयर डाटा, बाय ट्रांसफॉर्मिंग देयर डाटा इनटू डाटा वेयरहाउस. This is the core responsibility of you guys, that how useful insights you present before the client, that this is your business is doing, what it is you are performing in your whole organization, what is happening. I was working with a client, basically I was doing retail sort of stuff with them. तो रिटेल रिपोर्टिंग में कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई जिसमें कि ट्रांजैक्शन हुई किसी स्टोर, पर्टिकुलर स्टोर के ऊपर जाके ना. जब वो ट्रांजैक्शन हुई तो वो तकरीबन 18 मिलियन की ट्रांजैक्शन थी, वो सिंगल ट्रांजैक्शन 18. कैन यू इमेजिन, अपैरल का डाटा हो या वो एक छोटा एक रिटेल स्टोर हो और उसके ऊपर 100 रुपये, 200 रुपये, 5,000 या 10,000 से बड़ा कोई आइटम ना हो, और उसके ऊपर 18 मिलियन की एक ट्रांजैक्शन हुई हो. एंड अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन केम टू नो कि उस बंदे ने वो ट्रांजैक्शन की और उसने उस ट्रांजैक्शन को रिटर्न कर दिया, बट कैश इन हैंड नहीं था उनके पास. 18,000 आपने कैश लिया, समझ लें गलत ट्रांजैक्शन होगी, सिस्टम ने गलत ट्रांजैक्शन कर दी, गलती से हो गई, आपने उसको रिटर्न किया, बट उसने कैश में गड़बड़ कर दी थी. दे दे सिट विद द गाय. वो पहले मुझे, वो मेरे पास है, उन्होंने कहा कि ये ट्रांजैक्शन आपने गलत दिखाई हुई है. मैंने गया उनके सिस्टम में, मैंने जाकर मैंने, सर ये आपकी सिस्टम यहाँ पे पड़ी हुई, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरे पास तो डाटा है. एंड में पता चला कि उस बंदे ने जो है ना फ्रॉड किया था. तो डाटा इज, मैंने इसलिए पहले कहा कि डाटा इज एन एसेट. डाटा आपके लिए क्या है? एसेट. और एसेट आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपको रिटर्न में कुछ देता है. तो डाटा इज बेसिकली रिटर्निंग दिस सॉर्ट ऑफ वैल्यू के क्लाइंट को पता है कि मेरा बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस स्टोर के ऊपर मुझे कितनी इन्वेंट्री मूव करनी है, कौन सा स्टोर मेरा इन्वेंट्री अंडर इन्वेंट्री चल रहा है, कौन सा स्टोर मेरा ओवर इन्वेंट्री चल रहा है. ठीक है, कितना मेरा कैश ऑन हैंड है, कितना मेरा बैंक डिपॉजिट हो गया है, कितना जो है ना कैश ज़रूरत है स्टोर के ऊपर, मेरे मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, मेरे मंथली जो है ना रेवेन्यू कितना है, मैं टैक्स कितना पे करता हूँ. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए सिंपल गेम. ये एक सिंपल गेम है जो किसी भी एक रिटेल कंपनी को इस तरह की इंसाइट चाहिए होती है. इससे गेम आगे है, बहुत आगे है. नहीं, अगर मैं अपनी बात करूँ, कितना एक हमने सीख लिया होगा, कितना एक हमने उसके ऊपर काम कर लिया होगा. मार्केट बास्केट एनालिसिस है, चर्न एनालिसिस है, देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी है एनालिसिस की. आप इतनी इतनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो डाटा से. इफ वी टॉक अबाउट फेसबुक, अब फेसबुक के ऊपर हम लोग जाके अपना पोस्ट कर देते हैं, अपनी बायो बना देते हैं, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. आपको नहीं पता हम वो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, हमारे पास इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्यालात, अब जो सोचते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, हमारा घर कहाँ है, हम अपनी, हमारे पास कौन सी कार है, किस कलर की कार है, हमें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर, किसी न किसी एप्लीकेशन, किसी न किसी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर दे चुके हुए हैं. वी आर ऑलरेडी डिड दिस. और ये बिग डाटा है. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं. ठीक है, इनके ऊपर डाटा कैप्चर हो रहा है, और वो अगर बैठते हैं और वो एनालिसिस करते हैं, तो और वो करते भी हैं इसके ऊपर, तो वो आपको बता सकते, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बता सकते हैं आपने आज तक जिंदगी में क्या किया, आप कब इंगेज हुए, कब आपकी जो है ना कौन सी गर्लफ्रेंड थी. ठीक है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो आपको बता सकते हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं दे चुके हैं. तो मैं आपको एक वैल्यू एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि डाटा आपको वैल्यू देता है, बहुत ज्यादा वैल्यू. किसी ना किसी केस में, किसी ना किसी आपको या ना वो यूजफुल इंसाइट्स देते हैं, और यही मतलब वो चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी. सो डाटा इज ऑलवेज प्रोवाइड यू द वैल्यू इन रिटर्न. आपके पास डाटा है, आप उससे वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू आपके लिए यूजफुल होगी. ठीक है, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज नाउ द मेन पोर्शन जो जिसको हमने स्टडी करना है, डाटा वेयर हाउस. इसको हम डाटा वेयर हाउस को हम डाटा वेयर हाउस भी कहते हैं, ओलैप भी कहते हैं. ठीक है, अगर हम इसको डाटा वेयर हाउस कहें, ओलैप कहें, या हम इसको क्यूब कहें, डाटा क्यूब,
क्या ये सही होगा? अच्छा, एनीवन जो कि इस वक्त मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं कॉल के ऊपर, किसी को उर्दू समझने में कोई मसला तो नहीं है? नो। एनीवन अगर किसी को है तो वो बता सकता है। आई थिंक उर्दू में ज़रा ज़्यादा इजी हो जाता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को। ओके, सो डाटा वेयर हाउस हम इसको कहते हैं, ओलैप कहते हैं, और हम इसको डाटा क्यूब भी कहते हैं। अब जो हमारी मेन स्टोरी है हम उसके ऊपर आ रहे हैं। हमने डाटा को अंडरस्टैंड कर लिया, ओएलटीपी को अंडरस्टैंड कर लिया, ओलैप को डिस्कस कर लिया, हमने बिग डाटा को देख लिया कि डाटा अब ग्रो कर रहा है और चैलेंज बन रहा है कि इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। देखें, अगर 10 ट्रांजेक्शन्स हैं, 10 लाइंस ऑफ डाटा है, तो उसको तो आप मैनुअली बैठ के भी देख सकते हैं, अच्छा इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। अगर आपके पास थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रोज आ रही हैं, आप उसमें, आप उसको नहीं पता, वो रॉ डाटा है आपके लिए ना, तो उस पर यूजफुल इंसाइट्स नहीं मिल रही हैं आपको। स्टोरी समझ रहे हैं हम किस तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, हमारे पास डाटा था, वो बिग हुआ, बड़ा हो गया, अब वो बड़ा हो गया, अब हमने उसमें से यूजफुल इंसाइट्स निकालनी है, तो हम जा रहे हैं डाटा वेयर हाउसिंग की तरफ। ठीक है, इसको क्यूब भी पुकारूं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, डाटा वेयर हाउस कहूं, डीडब्ल्यूएच कहूं तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ओलैप कहूं तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज द सेम थिंग, एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा, वो कहता है डाटा वेयर हाउस इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल। बात हो रही है कॉन्सेप्चुअल मॉडल की। व्हाट इज बेसिकली द कॉन्सेप्चुअल मॉडल? एनी वन ऑफ यू गाइस, कॉन्सेप्चुअल मॉडल। बात कॉन्सेप्चुअल की हो रही है। मीन्स इम्प्लीमेंटेड अभी तक नहीं हुआ। ERD डायग्राम जो हम बनाते हैं उसको मेरे ख्याल से हम कॉन्सेप्चुअली कर रहे होते हैं डिजाइन, तो उसको कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल इज कि हम लाइक हम कोई चीज काम करने से पहले हम एक थीसिस बिल्ड करते हैं, हम एक हम उसके ऊपर R&D करते हैं, हम एक सॉल्यूशन डिजाइन कर देते हैं कि दिस थिंग विल बी लाइक, हम इमारत बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, हम कार बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट होता है, इसका साइलेंसर ऐसे होगा, इसका इंजन ये होगा, इसका स्टीयरिंग यहाँ लगा होगा, इसकी इतनी सीट्स होंगी, तो हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज अ ब्लूप्रिंट। इसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरह बनेगा, क्या इसके जो है ना कंपोनेंट्स होंगे जो जो कि हमें समझने होंगे कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है, और इसको सब्जेक्टिव मॉडल क्यों कहते हैं? OLTP की तरह इसको हम ट्रांजैक्शनल सिस्टम क्यों नहीं कहते? इसको सब्जेक्टिव मॉडल क्यों कहते हैं? याद है सब्जेक्टिव मॉडल की बात हुई थी शुरू शुरू में? एनी वन ऑफ यू गाइस जिसका फोकस हो सब्जेक्टिव मॉडल को, हम अब जाके आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल किस तरह से इसका है, किस कैसे काम करता है, और सब्जेक्टिव इसको क्यों कहते हैं, इस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं। सो अ डाटा वेयरहाउस इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्राइज डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे दैट इज बिल्ट टू सपोर्ट डाटा एनालिटिक्स। एक तो ये बात समझ आ गई कि ये बिल्ड इसलिए किया जाता है ताकि डाटा एनालिटिक्स को सपोर्ट कर सके। डाटा एनालिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए यानी हम एनालिसिस बिल्ड ही सही मानों में सही तरीके से इस डाटा वेयरहाउस के ऊपर, ओलैप के ऊपर, क्यूब के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मॉडल। अब सब्जेक्टिव मॉडल आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि कमरा, कमरे की कोई कमरा कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ सेंस नहीं बन रही। लेकिन मैं कहूं कि अगर ट्रेनिंग वाला कमरा वेपर वीएम के अंदर, तो सब्जेक्ट बन गया। समझ आ गया कि ट्रेनिंग वाला कमरा वेपर वीएम के अंदर, उसमें जाना है आपने, तो पूरा एक सब्जेक्ट बन गया। अगर मैं कमरे में जाना तो आपको किसी भी कमरे में चल उठ के चल पड़ेंगे। कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला ना, कि मैं कहूँ कमरे में चले, आप कहेंगे किस कमरे में जाना है, कौन सा कमरा, किस कमरे की बात हो रही है, सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। अगर मैं कहूँ आपने वेपर वीएम में ट्रेनिंग वाले कमरे में चले जाना है, तो अब मेरी बात पूरी होगी कि आपने कहाँ जाना है, एग्जैक्टली यू आर क्लियर ऑफ। तो सब्जेक्टिव मॉडल इसलिए कहा जाता है कि एनालिसिस में हम किसी चीज पे एम्बिग्यूटी पे काम नहीं कर रहे होते, हम मतलब गैसेस नहीं लगा रहे थे, अच्छा यार ये ऐसे होगा, ये इस तरह होना होगा, इस तरह हुआ होगा। ठीक है, इस तरह नहीं कि हुआ होगा, इस पे हम काम नहीं करते। हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, एग्जैक्टली जो डाटा हमारे पास होता है उस डाटा की बेस के ऊपर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर कोई चीज हैपन हुई थी तो वो क्यों हुई थी, वाई।
व्हेन कब हुई थी, वेयर कहाँ हुई थी। ठीक है, हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं कि हमारे पास अगर कोई चीज थी, कब हुई थी, किधर हुई थी, कहाँ हुई थी, कितनी मिकदार में हुई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स हुई थी, किस स्टोर पे हुई थी, पूरे चैनल की देख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टोर की देख रहे हैं, किसी एक रीजन की देख रहे हैं। अच्छा कितनी हुई थी, इतनी हुई थी, 10 लाख हो गई थी फॉर एग्जाम्पल। अच्छा कब हुई थी, किस टाइम पीरियड में हुई थी, किस टेन्योर में हुई थी, किस डे को हुई थी, किस वीक में हुई थी, किस ईयर में हुई थी। फिर गेम इससे आगे जाती है। अच्छा कंपैरिजंस बताएं मुझे, क्वेश्चन है ना। अच्छा मुझे कंपैरिजन बताएं, आज आप बता रहे हैं कल की जो है ना वो सेल है किसी एक स्टोर के ऊपर 10 लाख है, मुझे बताएं सेम ईयर सेम डे प्रीवियस ईयर में कितनी थी। क्वेश्चन आ गया ना। अब ये तो नहीं यार इससे अंदाजा लगा सकता हूँ मैं, इस साल 10 लाख हुई होगी तो पिछले साल 9 लाख होगी। आप ये नहीं कह सकते, यू कांट से दिस। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यू हैव टू बी फैक्चुअल ऑन अपॉन दिस। आपको वो डाटा है आपके पास, उसके ऊपर कैलकुलेट करें, प्रीवियस ईयर में जाएं, सेम डेट के ऊपर जाएं, डाटा के ऊपर कैलकुलेट करें, व्हाट डाटा इज टेलिंग यू, आप सेम प्रेजेंट कर दें क्लाइंट के सामने कि दिस इज योर डाटा टेलिंग मी कि 8-8.5 लाख पिछले साल हुई थी इसी डे में, इस साल जो है ना आपकी 10 लाख हुई है। वो कहेगा अच्छा क्यों नहीं हुई, दिस इज नॉट ऑफ योर कंसर्न। आप कहें आपके पास डाटा है, आपके पास इनसाइट्स हैं, आप बैठ के देखें क्यों नहीं हुई। अगर वो कहता है कि मुझे बिल्ड करके दें अच्छा क्यों नहीं हुई, देन आप जाएंगे, आप एक एनालिसिस बिल्ड करेंगे, ले आएंगे कि जैसे इसलिए नहीं हुई। अगर आपके पास उसका डाटा है तो डाटा होना मस्ट है। अगर डाटा नहीं तो फिर आप नहीं कहेंगे कि क्यों नहीं, अच्छा मेरा ख्याल ये है कि पिछले साल इसलिए नहीं हुई होगी। हो सकता है उस दिन पिछले साल उस दिन ईद हो, एक छुट्टी आ गई हो बीच में, आपके पास डाटा होगा ना कि यार इस दिन तो ये तो डे ऑफ था, आपके पास डाटा अवेलेबल होगा यार ये तो पिछले साल इस दिन आपने 3 दिन की सेल्स मांगी, इस साल 3 दिन ऑन थे आपके स्टोर पे सेल हो रही थी, पिछले साल तो इस डे में एक दिन ऑफ था इसलिए आपकी सेल कम हुई। तो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर आंसर। आपके पास डाटा होगा, आप उस डाटा के बेस के ऊपर एनालिसिस बिल्ड करें। अगर वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे बताओ, अपने से बता दो, तो आप कहेंगे सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं इसमें क्या आपको बता सकता हूँ, मेरे पास डाटा नहीं अवेलेबल, आप मुझे डाटा प्रोवाइड कर दें, आई विल गिव यू द इनसाइट्स, किस वजह से होती, क्या फैक्टर्स उसमें शामिल थे। ठीक है, वो अगर वो कहता है ना कि मुझे प्रिडिक्ट करके देंगे अगली कितनी होगी, तो वो भी हम करते हैं, वो फिर डाटा साइंस में चली जाती है। वो डाटाबेस की जो रोल्स होते हैं, एनीवन हैव एनी आइडिया रिलेटेड टू द डाटाबेस, डाटाबेस की जब हम बात करते हैं उसमें कौन कौन से रोल्स होते हैं, किसी को कोई आइडिया, एनीवन, कितने किस्म के रोल्स होते हैं, हम डाटा की कितनी फील्ड्स हैं, एनीवन हैव एनी आइडिया, क्लियर आइडिया। यस आई एम आस्किंग लाइक सिमिलर सॉर्ट। अब ये माइक ऑन करके भी हो सकते हैं ताकि वो लोग भी सुने। अगर किसी को कोई आइडिया है अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं कि डाटा में रोल किस तरह का। देखिए ये चीजें, ये वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो कि आपको आपकी डेस्टिनी, आपको आपकी डेस्टिनेशन डिफाइन करने में हेल्पफुल साबित होंगे। मैं आपको सारा डाटा वेयरहाउस पढ़ा दूं, आपको सारी एनालिटिक्स पढ़ा दूं, बता दूं, आपको समझा दूं, यू विल नॉट बी एबल टू, आप फिर वहीं किसी ना किसी जगह पे स्टक हो जाएंगे कि यार अच्छा यार मैं तो यार इसमें मुझे, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं डाटा एनालिस्ट हूँ, मैं डाटा इंजीनियर हूँ, मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ, मैं क्या हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने आप को समझना है ना, ये भी एक डाटा एनालिसिस का पार्ट है। तो लेकिन डाटा को समझने के रोल जो है ना डाटा के, जो वो 3-4 रोल है, मेन रोल है। आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि आपको राइट्स, डेटाबेस की मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें, आपको डाटा स्कीमा डिज़ाइन करना, ये सारा उनका काम होता है। फिर आ जाते हैं डाटा इंजीनियर जो कि डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लाइक ETL टाइप ऑफ स्टफ, चाहे वो पाइथन में कर रहे हो, किसी क्लाउड बेस्ड सर्विस के ऊपर कर रहे हो, किसी ऑन प्रेम सर्विस को यूज़ करके कर रहे हो। डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस जो काम करते हैं ना सारे, डाटा को स्ट्रक्चर करना, मैं उनको एक स्कीमा देता हूँ, OLTP देता हूँ, वो मुझे OLAP बना देते हैं। ठीक है, सो दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज दे आर कॉल्ड डाटा इंजीनियर्स। फिर डाटा साइंस आ जाती है और डाटा एनालिटिक्स आ जाती है। डाटा साइंस और डाटा डाटा एनालिटिक्स के जो लोग होते हैं, डाटा एनालिस्ट होते हैं, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, कि वो क्या करते हैं, वो डाटा से, उनके पास एक मॉडल होता है और वो क्या करते हैं, डाटा की एनालिसिस बिल्ड कर, उसके ऊपर एनालिसिस बिल्ड करते हैं, यूजफुल इंसाइट्स, उसके ऊपर वो किसी टूल को यूज़ कर सकते हैं,
वो किसी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, लाइक पाइथन को यूज़ कर लें, मॉडल को यूटिलाइज कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप टूल के थ्रू ही साइट, वो एक अलग बात है, हम टूल के थ्रू करते हैं, टूल बेस्ड होती है, टैबलो को यूज़ कर लेते हैं, पावर बीआई को यूज़ कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ सीखेंगे पावर बीआई। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक के अब ये डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स ये थोड़ी सी साथ साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। डाटा इंजीनियर जो क्यूब बनाते हैं, जो डाटा वेयर हाउस बनाते हैं, वो क्या करते हैं, डाटा एनालिस्ट भी उसी को कंज्यूम करते हैं और डाटा साइंटिस्ट भी उसी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, वो आगे आपको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, वहाँ पे फैक्चुअल की बात नहीं हो रही होती। हो सकता है उन्होंने अगले साल सेम डे में, जैसे हम प्रीवियस सिनेरियो देख रहे थे, 10 लाख की ही उन्होंने प्रिडिक्ट, 11 लाख प्रिडिक्ट की हो, लेकिन हो सकता है अगले साल वो उससे कम आ जाए, 7 लाख पे आ जाए, 7.5 लाख पे आ जाए। ठीक है, वो फैक्टर देखते हैं, कौन से फैक्टर उस पर शामिल थे, इस साल कौन से फैक्टर शामिल थे तो सेल्स कितनी गई, और अगले साल क्या फैक्टर होंगे, एक्सपेक्टेड फैक्टर्स, और उसके ऊपर क्या प्रिडिक्शन है, वो प्रिडिक्शन करते हैं। और प्रेडिक्शन आपको पता है ऑलवेज नॉट 100% ट्रू नहीं होती, लेकिन जो आप करंट में एनालिसिस, जो एनालिस्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन फैक्ट्स। वो नहीं कहते, इस तरह प्रिडिक्ट नहीं करते कि अच्छा जी मैं कह देता हूँ इतनी होगी, नहीं नहीं, वो ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे होते। दे आर वर्किंग ऑन द फैक्ट्स एंड ऑन डाटा। ठीक है, हम आते हैं डाटा वेयर हाउस की भी तरफ आते हैं। तो अब आई थिंक योर अंडरस्टैंडिंग इज प्रीटी मच क्लियर कि डाटा आप किस जगह पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अब आप कहेंगे जी हम तो इसमें ईटीएल भी पढ़ रहे हैं, हम तो इसमें ओएलटीपी भी पढ़ चुके हैं, हम तो इसमें ओलैब भी पढ़ रहे हैं, हम इसमें पावर बीआई को भी देखेंगे। तो इंडस्ट्री में कभी भी आप किसी एक रोल पे नहीं होते। ठीक है, रिसेंटली मैं किसी एक रोल पे हूँ। ठीक है, लेकिन प्रीवियसली मैं डाटा इंजीनियरिंग भी करता रहा हूँ, आई वॉज परफॉर्मिंग मॉडल के ऊपर भी काम करता रहा हूँ, मैं डाटा एनालिस्ट भी काम, मैं 2 रोल्स पे रहा हूँ, मतलब मैं डाटा एडमिन वाले काम भी कर चुका हूँ, और डाटा ऑप्टिमाइजेशन भी कर चुका हूँ। तो ये आपकी अपनी उसके ऊपर है कि अब आप कितनी चीज़ों में घुस सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन, लेकिन आपकी अपनी कैपेसिटी है, कुछ लोग कर भी जाते हैं, वो मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो वो आपकी अब खुशी है, आपका इंटरेस्ट है कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, डाटा साइंस में जाना चाहते हैं, डाटा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, या डाटा किसी भी उसमें आप रोल में डाटा एडमिन बनना चाहते हैं। सो दिस इज अप टू यू, बट ये जो टास्क है, जो हमारा कोर्स है, ये आपको डाटा एनालिटिक्स की तरफ लेके जा रहा है। इसमें 2 चीज़ें निकलती हैं, आप डाटा इंजीनियरिंग की भी तरफ जा सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स की भी तरफ जा सकते हैं, तो मोर फोकस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स साइड। तो ये हमारे पास क्यूब आ गया, इसको हम क्यूब भी कहते हैं, डाटा वेयरहाउस भी कहते हैं, ओलैब भी कहते हैं। डाटा वेयरहाउस इज अ डाटा क्यूब, ये मैंने देखें वर्ड यूज किया, दैट प्रोवाइड्स स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑफ ऑन फैक्चुअल डाटा। स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, किसी को है आइडिया? थ्रू डायमेंशंस, अब बात आ रही है, क्लियर हो रही है। स्लाइसिंग, डाइसिंग, डायमेंशंस, फैक्ट, ये वो चीजें हैं जो किसी वेयरहाउस को डिजाइन करने के लिए हम यूज करेंगे, आगे चलकर हम इनको पढ़ते हैं प्रॉपर। और यू कैन से अ डाटा वेयरहाउस इज अ डायमेंशनल मॉडल। मैंने बात फिर डायमेंशनल मॉडल की तरफ घुमा दी। पहले मैंने इसको डाटा वेयरहाउस कहा, ओलैब कहा, फिर मैंने इसको कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहा, फिर मैंने इसको जाके क्या कहा, डायमेंशनल मॉडल विच प्रोवाइड स्लाइसिंग एंड डाइसिंग फीचर ऑन डाटा। अब देखें, मैंने इसमें ट्विस्ट डाल दिया, मतलब मैंने इसको डिफरेंट नामों से ना एक ही स्लाइड में डाल दिया कि उसको आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी कह सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल मॉडल को ही आप टेक्निकल चीजों में कन्वर्ट करेंगे ना, फिजिकल मॉडल को आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल से ही फिजिकल मॉडल में आएंगे ना। तो यानी कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी उसको कह सकते हो आप, ओलैब भी कह सकते हो, क्यूब भी कह सकते हो, डाटा वेयरहाउस भी कह सकते हो। और ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम इसको देखते हैं आगे वाली स्लाइड में चल के ना। डाटा वेयरहाउस, ओलैब, कॉन्सेप्चुअल मॉडल, ये है एक्चुअल में हमारे पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल डाटा वेयरहाउस का। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल, डायमेंशंस की किसी को है? अच्छा मुझे बताएं, जो लोग सारे कॉल पे हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन इस वक्त तक कोई चीज समझ ना आई हो, किसी का कोई कंफ्यूजन, किसी ने कोई क्वेश्चन नोट डाउन किया हो? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। आपने 2 टर्म्स अभी ऑल्टरनेट कह लें, आप बेहतर बता सकते हैं, डेटाबेस और डाटा वेयर हाउस आपने यूज़ किया, तो ये एज एन ऑल्टरनेट टर्म यूज़ नहीं होती है, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं? क्योंकि प्रीवियसली जो हम पढ़े थे उसमें हम जब टेबल से क्रिएट करना और उसमें डाटा को मतलब फिल इन करना, इंसर्ट इनटू कमांड्स यूज़ करके, तो हम यूजुअली डाटाबेस यूज़ करते थे। अभी मैं आपके लेक्चर में नोट करी हूँ हम डाटा वेयर हाउस की टर्म को यूज़ करें,
तो आर दीज टू डिफरेंट थिंग्स या ये एक ही हैं और हम इनको ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस को? अच्छा, इसमें ऐसा है कि डेटाबेस को डाटा वेयरहाउस के साथ हम अल्टरनेट यूज नहीं कर सकते। डेटाबेस इज सम सॉर्ट ऑफ ए टूल। ठीक है, डेटाबेस आपका क्या है? सम सॉर्ट ऑफ ए टूल, कोई भी टूल जो कि डाटा, किसी भी किस्म के डाटा को कैप्चर करने के लिए हम यूज करते हैं या स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, या कह लें कि हम उसे डाटा रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। डाटा को मैनेज करने के लिए कोई भी टूल यूज करते हैं, वो हमारा डाटाबेस कहलाएगी। ठीक है, डाटाबेस कहलाएगी। अब हम इंडस्ट्री में अल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं कि यार वो डेटाबेस पड़ी हुई है, यार उस डेटाबेस के ऊपर ये चीज पड़ी हुई है। ठीक है, हम यूज कर लेते हैं इसको, लेकिन ये अल्टरनेटिव नहीं है कि हम कहें कि हमारी जो है ना ओ लैब और डेटाबेस सेम है। ओ लैब एक डेटाबेस ही होती है। ठीक है, यानी वो डेटाबेस सिस्टम के ऊपर पड़ी होती है, इसलिए उसको डेटाबेस भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये एक दूसरे के साथ या उसके साथ कंपैरिजन में रिलेटिवली नहीं चलते हैं। ठीक है, आप अगर वेयर हाउस की बात कर रहे हैं तो वेयर हाउस इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल उसको आप किसी डेटाबेस के ऊपर बना देते हैं तो वो एक फिजिकल मॉडल बन जाता है आपका। वो डाटा वेयर हाउस आपका किसी डेटाबेस के ऊपर चला गया, अब वो फिजिकल बन गया। तो वैसे इनको एक चीज नहीं कह सकते, वो एक टूल है और ये एक मॉडल है। मॉडल और टूल कभी भी सेम इसको नहीं ना होते। लेमैन लैंग्वेज में समझा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसको ना लेमैन लैंग्वेज में समझाना जरूरी है। अ, देखें, डेटाबेस जो है ना, कोई भी एक रिपोजिटरी है डाटा की। कहीं पे भी जब आप डाटा स्टोर कर रहे होगे ना, मैं उसे डेटाबेस कह सकता हूँ। अब इवन के मैं अगर फिजिकल मेरे पास रजिस्टर है ना, जिसके अंदर आपने कोई भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैं उसे डेटाबेस कह सकता हूँ। लेकिन डिजिटली तौर के ऊपर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अगर आप कहीं पे डाटा सेव कर रहे हो तो वो डेटाबेस है। ठीक है, वो खास तौर पे अगर रिलेशनल मॉडल में कर रहे हो, लाइक आप किसी भी टूल एंड टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके कर रहे हो, तो उसको हम डेटाबेस कह रहे हैं। ठीक है, वो डेटाबेस बहुत किस्म के हैं, लाइक आपको रिलेशनल मॉडल भी है, नो सीक्वल भी है। ठीक है, एमपीपी कॉलमर मॉडल्स भी हैं अब हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जियो टैगिंग डेटाबेसेस हैं। ठीक है, स्पार्शियल डेटाबेसेस उन्हें कहते हैं। अब ये सारे डेटाबेसेस हैं। डेटाबेस क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जिस जो कि कहता है, बल्कि एक फिजिकल एंटिटी है जो कि आपके डाटा को डिजिटली स्टोर करती है इन ए पर्टिकुलर वे। वो नो सीक्वल भी हो सकती है, सीक्वल भी हो सकती है, और जो मैंने कहा। अब इसके ऊपर ना कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि आपका डाटा जो है जब रिलेशनल मॉडल में जाएगा, ठीक है, तो वो रिलेशनल डेटाबेस उसे कह दें आप। ठीक है, ईआरडी के थ्रू हमने वो बनाया हुआ वो रिलेशनल मॉडल है। लेकिन अगर उसी डाटे को हम लोग डायमेंशनल में कर दें, डेटाबेस वही है, डायमेंशनल में ले जाएं, उसकी स्ट्रक्चर डायमेंशनल मॉडलिंग का बना दें, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका वेयर हाउस हो जाएगा। अब वो हमने ये समझना है कि डेटाबेस तो सेम था, एसक्यूएल सर्वर के ऊपर ही आपका ओलैप भी पड़ा हुआ है, ओएलटीपी भी पड़ा हुआ है तो एसक्यूएल सर्वर ही, लेकिन स्ट्रक्चर और डाटा जिस तरह वो पड़ा होगा दोनों डीबीज के अंदर, डेटाबेसेस के अंदर, वो बड़ा डिफरेंट होगा। एक डायमेंशनल मॉडलिंग को सपोर्ट कर रहा होगा, और एक जो है ना ईआरडी को सपोर्ट कर रहा होगा, एंटिटी रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा होगा। ईआरडी जो है वो आपका ओएलटीपी होगा, जो आपका डायमेंशनल मॉडल है वो ओलैप होगा। तो ये फर्क है। अंडरलाइन फिजिकली सेम डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए हम ये दोनों मॉडल सेपरेट तरीके से बनाएंगे, क्योंकि उनसे हमने कह लें कि जो डाटा रिट्रीवल है उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, डाटा राइट करने का तरीका डिफरेंट है। तो ये हैं दोनों फिजिकली एक ही, डीबी एक है, लेकिन ऊपर हमने जिस तरह डाटा को स्ट्रक्चर किया हुआ है वो इसको डिवाइड कर देता है कि वो एक डायमेंशनल मॉडलिंग बन जाती है और एक आपका एंटिटी रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये फर्क है। अदरवाइज आप डेटाबेस को कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं कर रहा। डेटाबेस इज बेसिकली द मेन रिपोजिटरी जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। अब वो किस स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है वो डिफाइन करता है कि ये डायमेंशनल मॉडल है कि ये ईआरडी है। इसको मैंने ओएलटीपी के लिए इस्तेमाल करना है या इसे ओलैप के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये अब जब ये कोर्स आगे चलेगा तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह एंटिटी रिलेशनशिप को डायमेंशनल में लेंगे।
क्योंकि डायमेंशनल के ऊपर अब हमने एनालिसिस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है। इवन दो अभी शायद आपके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल हो रहा हो, वजह ये है कि आप उसको अभी देखा नहीं ना भाई डायमेंशनल मॉडल क्या होगा। ई ईआरडी तो देख लिया, लेकिन डायमेंशनल मॉडल किस तरह का होगा वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पड़ता चलेगा, फिर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लोगे। लेकिन अंडरलाइन डेटाबेस इज द सेम, फिजिकली डाटा वैसे ही पड़ा हुआ है, रो और कॉलम में पड़ा हुआ ठीक है, थैंक यू है। सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, अब इसकी आई थिंक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी है कि हमें कि वो डेटाबेस में और डाटा वेयर हाउस में और उसमें क्या डिफरेंस है। आई थिंक वी सर अदील भाई ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब हम वापस आते हैं डाटा वेयर हाउस ओलैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल के ऊपर। ये आपके सामने एक क्यूब नुमा एक चीज़ है जो कि जिसका एक फेस है, जिसमें मैं आपको अगर दिखाऊं, ये एक साइड है इसकी, ठीक है, ये एक साइड है। इसको अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैंने इधर मैयर्स हैं जो मैंने इधर रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ हैं या कुछ कुछ भी है एक्स वाई जी जो फैक्ट्स से रिलेटेड कोई डाटा है। ये आपकी जैसे एक समझ लें एक रूम है ना, हमारे सामने एक रूम है, रूम की अगर एक किसी एक हम कॉर्नर को ले लें तो हमारे पास 3 डायमेंशन बनता है ना रूम, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस। सिमिलरली क्यूब मल्टी डायमेंशन होते हैं, यानी उसमें जरूरी नहीं कि 3 डायमेंशन हो, उसमें 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, 100 हो सकती हैं, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है, डाटा क्यूब या फैक्ट बेसिकली वही क्यूब की तरह होता है जिसको मल्टीपल डायमेंशंस क्या कर रही होती हैं, फिल्टर कर रही होती हैं। लाइक अगर इस सामने इस अगर हम पिक्चर में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक क्यूब है जिसमें एक डायमेंशन के ऊपर आ रही है डेट, जैसे हम पहले ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रहे थे। एक डायमेंशन के ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट और एक डायमेंशन के ऊपर आ रहा है सिटीज, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है और समथिंग एसएफ, ठीक है, और जूस है, कोला है, मिल्क है, क्रीम है, और ये डेट आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सेल्स वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सिटी एंड प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू है वो किस चीज का फंक्शन है, टाइम, प्रोडक्ट और सिटी का। यही सब्जेक्टिव मॉडल है आपका। यानी अगर मैं कहूं कि इस जगह पे आपके इस पोर्शन में यहाँ पे आपकी सेल्स है, इस साइड पे आपकी सेल्स है, तो सेल्स को कौन कौन सी चीज डिफाइन कर सकती हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अगर इस क्यूब में बात की जाए कौन कौन सी चीजें उसके ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं, उसको फिल्टर कर सकती हैं, उसको डिफाइन कर सकती हैं सेल्स को। आपका टाइम डेट है, टाइम है, आपका प्रोडक्ट है और आपका सिटीज है। अगर मैं कहूँ सेल्स मेरे पास फैक्ट है, ये वो फैक्ट है जिसके ऊपर मैं एनालिसिस बिल्ड करना चाहता हूँ, जिससे रिलेटेड मेरे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज हूँ, मेरे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं सेल्स को लेके, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि यार मुझे बताएं कि 3 एक की मेरी सेल्स क्या थी, कोई भी ईयर कोई भी हो सकता है, लेट्स से 2022 ले लेते हैं। 3 एक की मेरी सेल्स क्या थी, तीसरा मंथ उसकी फर्स्ट डेट की मेरी सेल्स क्या थी। सो यू हैव अ डायमेंशन, देख रहे हैं, एक एक्सिस के ऊपर, जैसे हम मैंने आपको कहा कि एक समझ लिया अगर ये नुक्कर आपका, ये वाला अगर नुक्कर आपका एक रूम का एक जो है ना कॉर्नर है, और इसके ऊपर डेट जो है ना एक डायमेंशन, जैसे आप अगर इसको रूम की एनालॉजी के साथ अगर इसको लिंक करें तो आपकी एक एक्सिस ये वाली एक्स एक्सिस बन जाएगी, एक आपकी वाई एक्सिस बन जाएगी, एक आपकी जी एक्सिस बन जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसको हम ये जहाँ पे 12 लिखा हुआ आ रहा है, अगर इस कॉर्नर को हम एक मान लें कि एक यहाँ पे एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमारी एक जगह पे डेट की डायमेंशन आ रही है, एक जगह पे हमारे पास प्रोडक्ट की डायमेंशन आ रही है और एक जगह पे हमारे पास सिटीज की डायमेंशन आ रही है। तो अगर मैं इस सेल्स को डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर देखना चाहूं तो क्या मैं देख सकता हूं, इस क्यूब को मैं डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर, मैं चाहता हूं कि मुझे न्यूयॉर्क की सेल्स बताएं, मुझे बताएं न्यूयॉर्क में कितना जूस सेल हुआ 3 एक को, क्या मुझे कोई आंसर कर सकता है इस पर्टिकुलर मॉडल को देख के? पिक्चर क्लियर हो रही है, कोई चीज कंफ्यूजिंग तो नहीं है? कर सकते हैं ना, हम वो रीजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अच्छा जी आपका इतनी सेल्स हुई न्यूयॉर्क में जूसेस की 3 एक को। यही क्वेश्चन में मल्टीपल
मैं कहूँगी अच्छा जी न्यूयॉर्क में ही मुझे बताएं कोला कितना सेल हुआ, न्यूयॉर्क में मुझे बताएं मिल्क कितना सेल हुआ सेम डेट को, ठीक है, क्रीम कितनी सेल हुई। तो इसमें आप जब आप क्यूब बना देते हैं, आप समझ आ रही है कि जब हम क्यूब बना देते हैं, अब यहाँ पे तो सिर्फ 3 डायमेंशन फिट हो सकती थी ना, मैं 3 डायमेंशन क्यूब बना सकता था। सिमिलरली जब हम इस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को फिजिकल मॉडल में लेके जाएंगे, वहां पे बहुत सारी मल्टी डायमेंशन की बात हो रही है, डायमेंशन फिक्स नहीं कि मैंने 3, लेकिन यहाँ पे क्यूब में चूंकि 3 हो सकती थी, तो ये एक बेस्ट केस सिनेरियो था जो मैं प्रोड्यूस कर सकता था। तो अब आपको समझ आ रही है कि हमारे पास एक फैक्ट है और हमारे पास डायमेंशंस हैं जो कि उस फैक्ट को क्या कर रही हैं, फिल्टर कर सकती हैं, उसकी स्लाइसिंग एंड डाइसिंग कर सकती है। ये आगे सर चल के हम फिर और इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसकी स्लाइसिंग एंड डाइसिंग कर सकती हैं। हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर उस सिमिलर एक ही फैक्ट के ऊपर हम हर तरीके से उसके क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना इनको बताना जरूरी है कि जो डाटा वेयर हाउस का जो डाटा मॉडल है ना, वो डायमेंशनल मॉडलिंग, ये बात हो रही जी डायमेंशनल मॉडलिंग की बच्चों। जी जी इसको बताना बड़ा जरूरी है आप लोगों को कि जो डाटा वेयर हाउस का जो डाटा मॉडल है, देयर इज ओनली वन डाटा मॉडल फॉर डाटा वेयर हाउस, ठीक है। उससे अलावा बहुत सारे और भी हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है, जो हाईली यानी कि कंप्लाइंट है, ठीक है, डाटा वेयर हाउसिंग के लिए, वो है डायमेंशनल मॉडलिंग डाटा मॉडल। अब ये बात कॉन्सेप्ट ताहिर डिस्कस करें सारी डायमेंशनल मॉडलिंग की, ठीक है। आपने बहुत दफा फैक्ट सुना होगा, बहुत ज्यादा डायमेंशन सुनी होंगी, इसके अलावा आप हायरार्कीज भी सुनोगे, ड्रिलिंग भी देखोगे, लेफ्ट अप राइट डाउन, ठीक है, ये सब सब किस्म की ड्रिलिंग भी आएंगी, ठीक है। तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना, हम बात करें भी डाटा मॉडल की। ये सारे क्यूब्स हैं डायमेंशनल मॉडलिंग के अंदर, आपको लिंक शेयर किया जाएगा, आप सेल्फ लर्न भी करें उसको। लेकिन ये डायमेंशनल मॉडलिंग क्या है? इट्स अ डाटा मॉडल दैट इज रिकमेंडेड फॉर डाटा वेयर हाउसिंग, एंड डाटा वेयर हाउसिंग अगेन किसी डाटाबेस के ऊपर ही करनी है आपने। तो इसको कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, हम लोग ये सब कुछ जो है ना लेके चलेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में ताहिर बहुत हाई लेवल रखना है आपने इसको। ये सेशन जो है ना जस्ट इंट्रोडक्शन दें इनको कि क्या हो सकता है, ठीक है, जी क्या जी होता है, बिल्कुल, क्या जी होता जी बिल्कुल ऐसे ही। है। सो द नेक्स्ट, अब ये हमने डायमेंशनल मॉडल देखा, उसके बाद आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनल मॉडल। डायमेंशनल मॉडल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो लैब भी मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो फैक्ट्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, और हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इन चीज़ों को हम देखेंगे। अच्छा, एक होता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनल मॉडल। हम बेसिकली डाटा वेयर हाउस और फिर डायमेंशनल मॉडल के ऊपर आ गए, डायमेंशनल मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द बेसिकली स्टैंडर्ड डायमेंशनल मॉडल जो कि रिकमेंडेड होता है, जिसके आप अगर आप 100% नहीं इसको अचीव कर सकते तो इसके नियर नियर चले जाएं, ठीक है। मतलब स्टैंडर्डाइज एक चीज को करना, स्टैंडर्ड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके एलिमेंट्स में होता है आपका फैक्ट्स, डायमेंशंस एंड एट्रीब्यूट्स। अब हम फैक्ट्स एंड डायमेंशन जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इनको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स आर द मेजरमेंट्स। अब फैक्ट बेसिकली एक टेबल होता है, अब इसको टेबल कह सकते हैं। वैसे तो अगर सिंपल फैक्ट की बात की जाए तो वो मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट होगी किसी चीज से रिलेटेड, लाइक किसी सेल्स के कुछ नंबर्स होंगे, क्वांटिटीज होंगी, कुछ इन्वेंट्री के कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेल्स के फैक्ट की बात करें तो उसमें सेल्स से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है। फैक्ट्स आर द मेजरमेंट्स, मैट्रिसेस और फैक्ट्स फ्रॉम योर बिजनेस प्रोसेस। आपके बिजनेस प्रोसेस से लिए गए कुछ फैक्ट्स होंगे, ठीक है। For a sales business process, a measurement would be quarterly sales number or daily sales number or whatever it is, the grain you have chosen. मीन्स कि वो अगर आर्ली बेसिस पे आप रख रहे हैं तो आर्ली बेसिस पे भी हो सकते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे सेल्स के नंबर रखना चाहते हैं डेली बेसिस पे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको मिनट लेवल पे ले, ये ग्रेन इज टोटली डिफरेंट। जब हम उसको उसके आर्किटेक्चर बनाने पे जाएंगे तो हम फिर ग्रेन को भी डिफाइन करेंगे, ग्रेन क्या चीज़ होती है, ठीक है। अभी आपने ये समझना है कि मेजरमेंट्स होती हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स से रिलेटेड जो जो मेजरमेंट्स हो सकती हैं पॉसिबल, वो आपके सेल्स के फैक्ट में आ जाएंगे, ठीक हो गया। सिमिलरली आपका जाता है डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है। डायमेंशंस क्या होती हैं आपकी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली सेट ऑफ एट्रीब्यूट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइक अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, मैं किसी एक प्रोडक्ट की सेल देखना चाहता हूँ, मैं किसी एक जेंडर, प्रोडक्ट की एक कैटेगरी जेंडर या किसी कैटेगरी के किसी जेंडर की सेल देखना चाहता हूँ। तो बेसिकली एक सब्जेक्ट है मेरे पास कि प्रोडक्ट वाइज सेल देखना चाहता हूँ, प्रोडक्ट वाइज सेल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे
डिफरेंट जेंडर्स की मैं देखूं कितनी सेल्स हो रही है, किस जेंडर में कितनी सेल हो रही है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया, एक उसका सब्जेक्ट हो गया उस सेल्स के फैक्ट का। ठीक है, अब उसको हम क्या कह देते हैं, डायमेंशन कह देते हैं। हर सब्जेक्ट एक डायमेंशन होगा। अगर डेट की मैं बात करूं, मैं डेट वाइज देखना चाहता हूँ, डेट एक डायमेंशन होगी। अगर मैं कहूं कि मैं स्टोर वाइज देखना चाहता हूँ, स्टोर मेरा एक डायमेंशन होगा। अगर मैं कहता हूं जी मैं अपना कस्टमर वाइज देखना चाहता हूँ, कस्टमर मेरी एक डायमेंशन होगी। ठीक है, अब डायमेंशन में क्या चीजें आएंगी, एक तो इसमें एक तो समझ लें कि मतलब नॉर्मलाइज नहीं होती, डी नॉर्मल। हम इनको डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम ओलैप को डिजाइन कर रहे होंगे, तब हम इनको फिर फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमने चीजें पढ़ी थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, अभी हम जस्ट इसको हाई लेवल पे ही पढ़ रहे हैं कि ये चीजें क्या होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस कौन से क्यूब के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं, डायमेंशनल मॉडल के ऊपर परफॉर्म, ये हम सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। वो कहता है डायमेंशंस प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट सराउंडिंग अ बिजनेस प्रोसेस, यानी बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वो क्या डिफाइन कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि रूम में जाना है तो आपको नहीं पता चलेगा कौन से रूम में जाना है। अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट क्लियर कर दूं कि यार आपने फलां रूम में फलां जगह पे फलां रूम में जाना है, तो देन यू आर क्लियर कि आपने क्या करना है, आपको एक लोकेशन मिल जाती है, एक टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपके कॉन्टेक्स्ट होता है सराउंडिंग अ बिजनेस प्रोसेस। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट, क्लाइंट कहता है कि मैंने प्रोडक्ट वाइज सेल देखनी है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर जरूरी नहीं एक्स वाई जी, वो आपको कहता है मुझे रिपोर्ट बना दे, मेरा एक बिजनेस है और मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं और ये मेरी इन्वेंट्री का सिस्टम है, ये मेरा एक्स वाई जी सिस्टम है, इसमें से डाटा आपको जो लेना है ले लें, और मुझे एक छोटा सा वेयर हाउस बना के और उसमें मुझे आप जो है ना एनालिटिक्स बिल्ड कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या आपके पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें क्लियर कराई जा रही हैं। In simple terms, they gave who, what and where of a fact, यानी ये who, what and where of a fact, fact से related ये information देती है। Sales किसकी, किस स्टोर की, what किस, मतलब अब उसको अगर what को देखें किस प्रोडक्ट की, ठीक है, when किस टाइम की। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये उनको क्लियर करने के लिए आपके डायमेंशन जो है ना आपकी वो बनाई जाती है, या फिर फैक्ट। इन द सेल्स बिजनेस प्रोसेस फॉर द क्वार्टरली सेल्स नंबर डायमेंशंस वुड बी, वो कहता है सेल्स की अगर बिजनेस की बात करें और सेल्स के पर्टिकुलर फैक्ट की बात करें तो डायमेंशंस क्या होंगी, हु कस्टमर नेम, किस कस्टमर ने खरीदा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोकेशन, किस लोकेशन पे बिका। ठीक है, विच लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे बिका। प्रोडक्ट नेम, कौन सा प्रोडक्ट बिका। ठीक है, कितना बिका, ये तो आपको फैक्ट बताएगा ना कि कितना बिका, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसकी सेल्स वैल्यू कितनी थी, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी, क्या थी, ये सारा तो आपको फैक्ट बताएगा ना। लेकिन कौन सा, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं ये आपको सब्जेक्ट क्लियर करता है। मैं कहता हूं रूम में चले जाओ, आप कहते हैं विच रूम, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं ये वाला रूम। तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, सब्जेक्ट है ऑफ दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट, फैक्चुअल डाटा। फैक्चुअल डाटा में कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर नहीं करते। ओएलटीपी में हम कुछ और तरह का स्कीमा डिजाइन करते थे, वहां पे हम नॉर्मलाइजेशन करते थे, डाटा को रिपीट नहीं करते थे। यहाँ पे प्रोडक्ट में जेंडर बार बार रिपीट हो रहा होगा एक कॉलम में, अब जिन प्रोडक्ट्स का सेम जेंडर है वो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से क्लास भी रिपीट हो रही होगी, सब क्लास भी रिपीट हो रही होगी, तो चीजें रिपीट हो रही होंगी। ये डी नॉर्मलाइज्ड होता है स्कीमा। सेल्स में आपको कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी होगी, और ये लिंक किस चीज के थ्रू होंगी, ये किसी न किसी कॉलम के बेस के ऊपर लिंक होगी। वो आगे हम चल के देखेंगे कि वो किस तरह के कॉलम्स हो सकते हैं, क्या हो सकती हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। एट्रीब्यूट्स आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायमेंशन। ये एट्रीब्यूट जो है ना वो किसी एक डायमेंशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट की आईडी क्या है, प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट का जेंडर क्या है, कलेक्शन कौन सी है, क्लास कौन सी है, सब क्लास कौन सी है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसका स्कू कौन सा है। गॉट इट, समझ आ रही है। ये सारे के सारे क्या हैं, उस पर्टिकुलर डायमेंशन के एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक अगर हम बात करें स्टेट, ये लोकेशन के जो डायमेंशन है उसकी स्टेट कौन सी, अच्छा ये जो स्टोर है कौन सी स्टेट में है, अच्छा उस कंट्री कौन सा है, स्टोर कौन सी कंट्री का कौन सी स्टेट का है। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टोर ले लेते हैं जो कि पूरी दुनिया में उनके स्टोर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन, जिप कोड कौन सा है उस सिटी का, पर्टिकुलर सिटी का जिप कोड कौन सा है, उसका एड्रेस कौन सा है, वो रीजन कौन से में पड़ता है,
ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी लोकेशन की उसके ऊपर। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डायमेंशंस होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू सर्च, फिल्टर और क्लासीफाई फैक्ट्स। सर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जेंडर वाइज मैं कहता हूँ मुझे जेंडर एक्स की जो है ना सेल्स दिखा दो, जेंडर वाई की सेल्स दिखा दो, जेंडर जी की सेल्स दिखा, टॉडलर्स की दिखा दो, मुझे मेल्स की दिखा दो, मुझे वुमेन्स की या फीमेल्स की दिखा दो। ठीक है, मुझे टीनेजर्स की कुछ, अगर कुछ कोई ऐसा ब्रांड है जो कि टीनेजर्स के लिए भी कुछ बेच रहा है, मैं कहता हूँ उनके लिए भी, फॉर एग्जांपल 13 ईयर्स 14 ईयर्स के कुछ बच्चे हैं, उनके लिए कुछ बेच रहा है। तो मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं ना, उनको डिफरेंट नेम्स दिए होते हैं। अब मैं आई एम नॉट प्रीटी मच गुड एट कि वो उन एज ग्रुप्स के नाम मुझे नहीं आते ज़्यादा। टॉडलर होते हैं छोटे, आई थिंक बच्चे होते हैं, तो फिर मेंस वीमेंस इस तरह के, यानी वो अगर आप उसकी बात करें तो एट्रीब्यूट्स हमेशा क्या सर्च करने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं। क्लासीफाई फैक्ट्स को आप क्लासीफाई कर देते हैं ना, उसको आप कि इस कैटेगरी में इतनी चीज, इतनी सेल्स चलेगी, इस कैटेगरी की इतनी सेल्स है, तो आप फैक्ट्स को बेसिकली क्लासीफाई कर रहे हैं। डायमेंशन टेबल्स कंटेन एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स हमेशा डायमेंशन टेबल में होते हैं। अब आ जाते हैं डाटा वेयर हाउस ऑपरेशंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम डाटा वेयर हाउस क्या कहते हैं, डाटा वेयर हाउस एलिमेंट्स के बाद हम डाटा वेयर हाउस ऑपरेशंस पे आएंगे। अब डाटा वेयर हाउस, ये क्यूब, इसको डाटा वेयर हाउस भी कहते हैं, क्यूब भी कहते हैं, डायमेंशनल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास क्यूब बन गया, हमारे पास डायमेंशनल मॉडल बन गया। ठीक है, इसको डाटा वेयर हाउस कह देते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास डाटा वेयर हाउस है, क्यूब है, उसके ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है रोल अप, ड्रिल डाउन, से स्लाइस एंड डाइस, पिवट। स्लाइस एंड डाइस का किसी को आइडिया है? स्लाइस किसी चीज की, क्या अगर हम मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब की स्लाइस कैसे करोगे? एक सब पोर्शन की पूरा एक स्लाइस ले लोगे ना, कुछ एक लेयर ले लोगे। ठीक है, अगर पिज्जे की स्लाइस की बात करें तो फिर तो आई थिंक सबको पता होगा, पिज्जे का एक स्लाइस होता है ना, लेकिन वो थोड़ा राउंड शेप में होता है, क्यूब थोड़ा और शेप में होता है। तो अगर समझे क्यूब का स्लाइस लेना हो तो हम, अगर फॉर एग्जांपल छुरी है हमारे पास और क्यूब का स्लाइस लेना, तो हम उसको प्रॉपर एक शेप में काट देंगे। तो बेसिकली स्लाइसिंग एंड डाइसिंग दो सेम कॉन्सेप्ट है। आगे चल के हम इसको देखते हैं। रोल अप क्या होता है? अच्छा, रोल अप जो है ना, रोल अप ऑपरेशन समराइजेस। अब रोल अप क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम किसी सब डायमेंशन के ऊपर देख रहे थे, मैंने फॉर एग्जांपल एक डाटा डाला हुआ था स्टोर वाइज, फिर ब्रांड वाइज। अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, मैंने इसको रोल अप मतलब एक डायमेंशन ऊपर जाके मैंने देखना है। अब मैंने उसको पहले मैंने उसको स्टोर वाइज डाला हुआ था, फिर मैंने उसको ब्रांड वाइज डाला हुआ था। मुझे स्टोर ए की सेल्स, स्टोर ए के ब्रांड एक्स की सेल दिखाई दे रही थी। मैंने उसको जब रोल अप किया, अब मुझे ब्रांड्स गुम हो गया, अब मुझे सिर्फ स्टोर वाइज दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर रीजन वाइज भी है, एक रीजन में मल्टीपल स्टोर हैं, तो अब मैं अगर फिर इसको एक लेवल फर्दर रोल अप कर दूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? सिर्फ रीजन वाइज सेल्स दिखेंगी। तो रोज, नंबर ऑफ रोज कम होती जा रही है, ग्रेन अप होता जा रहा है। ठीक है, तो रोल अप बेसिकली क्या होता है कि आपकी एग्रीगेशन को हायर लेवल के ऊपर लेके जाता है। ठीक है, गॉट इट। इसका जो रिवर्स प्रोसेस, अब इसकी डेफिनेशन है सामने। रोल अप ऑपरेशन समराइजेस और एग्रीगेशन द डायमेंशंस आइदर बाय परफॉर्मिंग डायमेंशन रिडक्शन, डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हैं आप, यानी पहले आप ज्यादा डायमेंशंस पे देख रहे थे, आप वन बाय वन डायमेंशन को, या हो सकता है एक ही जगह पे आप कहेंगे नहीं मैं तो रीजन वाइज देखना चाहता हूँ, तो सारी डायमेंशंस हटा दें, बाकी रीजन को रहने दें, रीजन वाइज आप सेल्स देखना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा आपकी किस रीजन की कितनी सेल्स हैं। तो रोल अप इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डायमेंशन, डायमेंशन रिडक्शन प्रोसेस है बेसिकली। ठीक है, इससे अगला, इसका बिल्कुल उलट है, ड्रिल डाउन। अब आपने डायमेंशन ऐड कर रहे हैं, आप रीजन पे थे, आपने कहा स्टोर ऐड कर दो, आपको स्टोर वाइज दिखना शुरू हो गई, रीजन वाइज फिर स्टोर वाइज, फिर रीजन और स्टोर वाइज देख रहे थे, फिर आपने ब्रांड डाल दिया, प्रोडक्ट ब्रांड, अब आपको रीजन, स्टोर और ब्रांड वाइज दिखाई दे रही है, प्रोडक्ट ब्रांड वाइज। तो आप डायमेंशंस का काउंट बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, अब आपके पास देखिए कितनी अच्छी स्टोरी, कितना अच्छा सिनेरियो, आपके पास क्यूब बन गया ना। अब बस डायमेंशन है ना, आप उन डायमेंशन के साथ खेल सकते हैं, आप ड्रिल अप कर सकते हैं, रोल अप कर सकते हैं, ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइस एंड डाइस कर सकते हैं।
अगर यही हम OLTP में कर रहे होते तो क्या हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे? तो इवन सर मेरा एक क्वेश्चन है इम्पॉसिबल। जी जी। सर, जब हम लोग OLTP में कर रहे थे तो उसमें सिर्फ एक टाइम को अगर हम कंसिडर कर लें तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं फिर वो OLAP में आ जाती हैं। मॉडल तो मतलब OLTP ही है, अगर सिर्फ उस उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करें और सिर्फ एक डायमेंशन उसमें टाइम का ऐड करें तो वो सारी डायमेंशंस जो हैं वो OLAP मॉडल बन जाता है। नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल कि अगर वही डायमेंशन, वहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वहां पे आपके पास डायमेंशंस नहीं होती। मीन्स कि वहां पे अगर आपने देखे ना, अगर आपने अगर उस पर सही तरह से काम किया हुआ वहाँ है, पे मैं लेट्स हम ज्वाइन करते हैं कुछ मींस दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो इट डजंट मींस कि हम एक डायमेंशन ऐड कर रहे हैं। सम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं कहूंगा नहीं 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 नहीं, वो क्योंकि डायमेंशन नहीं है, वो एंटिटी है। देखिए आप दो मॉडल्स को फिर डिफरेंट, आप मैंने वही कहा था कि ये मॉडल ही डिफरेंट है। उसके अंदर जब आप कोई चीज ऐड करते हैं ना तो आप एज एन एंटिटी ऐड करते हैं। ईआरडी वो उसका सारा कॉन्सेप्ट ईआरडी के थ्रू चलता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू। इसका सारा कॉन्सेप्ट डायमेंशनल मॉडलिंग के अंदर फैक्ट्स और डायमेंशंस पे चलता है। आपने इसको उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, इसका कोई लेना देना उससे नहीं है। वो सेपरेट चीज है। वहां पे हमने एंटिटीज डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो। ठीक सर है, एक हमने चीज मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि जिस तरह हम हाँ। लोग अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, एटीएम की बात करते हैं, और हम्म जब हम वहाँ पे बात कर रहे थे और वहाँ से डाटा निकलवाना था हम लोगों ने, लेट्स से हमें कोई बैंक कहता है कि हमें फलां डेट को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई थी, सबीर साहब ने हम्म कौन सी ट्रांजैक्शन की थी फलां डेट को, हम्म जब हम वहाँ से हम्म डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो फिर ये सिंपल ओलैप मॉडल रिट्रीवल है। नहीं। वो सिंपल रिट्रीवल है, रिट्रीवल ऑफ डाटा फ्रॉम ओएलटीपी सिस्टम। ओलैप का तो उसे कुछ मैं कहा, ओलैप डायमेंशनल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है। डायमेंशनल मॉडलिंग जो है ना, एक सेपरेट डाटा मॉडल है जो कि डाटा वेयर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वहां पे तो हमने ठीक। अगर वहां पे अगर हमारे पास ईआरडी था तो देखें, मैं आपको एक इमेज शो शेयर करता हूँ। आपने इसको, ये मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, आप इसको समझो। देखो ये क्या है, ये आपने अगर आपने फिजिकली ईआरडी बनाई है तो ये बनती है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर ये है। अब ये मॉडल जो है ना, ईआरडी मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। ये ओएलटीपी का मॉडल है। अगर मैं इसको दिखाऊं डायमेंशनल मॉडल क्या बनेगा, डायमेंशनल मॉडल इज वेरी डिफरेंट। इस पूरे डाटे को हमने सिर्फ कन्वर्ट कर दिए सिर्फ चार चीजों पे। ठीक है, एक फैक्ट बनाया है और उसके आसपास सारे जो है ना डायमेंशन बना दिए। ये मॉडल तो कनेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल है ना, इसके ऊपर तो एनालिसिस हो ही नहीं सकता। रियल टाइम में यही होता है, जब आप एक ईआरपी का मॉड्यूल लिखते हो ना, जब एप्लीकेशन लिखते हो, तो बिहाइंड द सीन एप्लीकेशन के पीछे जो डेटाबेस होता है वो ऐसा नजर आ रहा होता है। और अगर मैंने एनालिसिस करना है, इन 6 टेबल्स को एक पास आपस में जोड़ के अगर डाटा निकालने की कोशिश करूंगा तो इस पूरे सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड आएगा जो कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो अवेलेबल है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए। मैं उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन सारों को फिर से जोड़ा जाता है और एक नया मॉडल बनाया जाता है जिसे कहते हैं डायमेंशनल मॉडल। और वो डाटा सारा उसमें डाल दिया जाता है और वहां पे एनालिसिस होता है। इसीलिए आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट का कोई आपस में लेना देना नहीं है कि यहाँ वाला टेबल वहां नहीं जा सकता, वहां वाला यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों अपने मॉडल में रिजाइड करते हैं। ठीक है, तो वो ठीक। ये है आपका रिलेशनल मॉडल, जो सॉरी ईआरडी मॉडल, एंटिटी रिलेशन मॉडल। और ये है आपका डायमेंशनल मॉडल। ठीक है, अब मैं ये लिंक आपको शेयर करूंगा, आप पूरा भी पढ़िएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई चल क्या रहा है। जी ताहिर, कंटिन्यू करें आप। थैंक यू सर। क्लियर है अब इसका कॉन्सेप्ट? जी सर, थैंक यू। ओके। सो बेसिकली जैसे अदील भाई ने बताया कि वो दो डिफरेंट स्कीमाज हैं। अगर हम उसके ऊपर जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्यूरीज जो है ना, वो इसमें क्योंकि एनालिटिकल में क्यूरीज हमारी बहुत उसमें कम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, मॉडल सिंपल होता है, क्यूरीज कम्प्लेक्स होती हैं। तो अगर हम यही क्यूरीज एनालिटिक उसके ऊपर चलाने की कोशिश करेंगे, दैट विल अगेन बी डिफिकल्ट फॉर द सिस्टम। सिस्टम को ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना एफर्ट लगानी पड़ जाएगी,
कि वो डाटा उस तरीके से रिट्रीव करने के लिए। तो इसलिए हम मॉडल को ही सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हमारी क्यूरीज के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए, ठीक है, ताकि जब डाटा रिट्रीव हो रहा हो तो रिसोर्सेज कम यूटिलाइज हो। अगर प्रोसेसर कम है या कुछ हमारे पास रिसोर्स की अगर लिमिटेशन है जो कि नॉर्मली हमारे पास ऑन प्रेमिसेस सिस्टम में ज़्यादा होती है, तो इट इज़ ये इसीलिए अलग ही एक जो है ना स्कीमा है, अलग ही एक मॉडल है जिसके ऊपर हम वेयरहाउस को डिज़ाइन कर देते हैं। अच्छा, अब अगला इसमें आ जाता है स्लाइस एंड डाइस, जो कि एक बहुत ही ताहिर आप ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में वो मैंने किया ना तो ब्रेक हो गया। थैंक यू। यार आपने मुझे आखिर में 10 मिनट्स देने हैं, इसको रैप अप करें ताकि मैं ना इनको मुकम्मल कॉन्सेप्ट बता दूं कि कॉन्सेप्ट किस तरह डाटा फ्लो पूरा समझाऊं इनको, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस मैं इसको रैप अप कर दूं। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें स्लाइस एंड डाइस का, द स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन पिक्स अप वन डायमेंशन ऑफ द डाटा क्यूब। अब इसमें देखें हाईलाइटेड एरिया ऊपर वाले में ये स्लाइस है, जो ब्लू हाईलाइटेड एरिया है दैट इज बेसिकली अ स्लाइस ऑफ ए क्यूब डायमेंशनल मॉडल। अब ये आप किसी फॉर एग्जांपल ये किसी एक स्टेट एक 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 उसके ऊपर भी है, यहाँ पे ये नेमिंग थोड़े से स्मॉल आ रहे हैं, आई थिंक नॉट विजिबल। ये एशिया है, ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो है रीजन्स हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। तो एशिया का जो रीजन है ना उसका जो डाटा है वो सारा एक स्लाइस है। तो अब कोई इस पिक्चर से काफी क्लियर हो रहा होगा। और अगर हम एक बड़े क्यूब का एक छोटा क्यूब अंदर से एक पोर्शन निकालें तो उसको बेसिकली डाइस कहते हैं। बेसिकली अल्टरनेटिव ही यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उतने इजी भी नहीं है। स्लाइस इज सम सॉर्ट ऑफ स्लाइस, जैसे हम क्यूब से अगर हम देख लें जो कि हाईलाइटेड एरिया में है, और अगर हम डाइस की बात करें तो ये नीचे वाले क्यूब में जो रेड हाईलाइटेड एरिया ये डाइस है हमारे पास, ठीक है। अब अगला जो है ना वो इसमें पिवट है। पिवट इज बेसिकली इज नॉट अ कैलकुलेटिव ऑपरेशन। ये जो है ना कैलकुलेटिव, इट रोटेट्स डेटा क्यूब। ये क्या करता है, डाटा क्यूब को आप अपनी मर्जी से रोटेट करें। अब एक्स वाई जी डायमेंशन पहले डाल रहे हैं, वाई डायमेंशन पहले डाल रहे हैं, एक्स डायमेंशन बाद में डाल रहे हैं, तो जिस तरह से आप उसको मर्जी उसको डाटा को देखना चाहते हैं, जिस ग्रेन के ऊपर देखना चाहते हैं, डाटा को रोटेट क्यूब को रोटेट करने के लिए यूज होता है बेसिकली पिवट। जी ये लास्ट ऑपरेशन था डायमेंशनल मॉडल डाटा क्यूब के ऊपर। हमने उसके एलिमेंट्स पढ़े, हमने उसके ऊपर ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म हो सकते हैं वो पढ़े। अब हमारे पास एक थोड़ा सा एक छोटी सी समझ लें एक स्पॉटलाइट सॉर्ट ऑफ थिंग, व्हाट इज द नीड फॉर बीआई। ये क्वेश्चन है मेरा कि बीआई की ज़रूरत क्यों है। किसी की कोई पिक्चर क्लियर हुई अभी तक? आई थिंक हमें बस टाइम थोड़ा है, हम इन चीज़ों को रैप अप करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी व्हाट इज द नीड फॉर बीआई। बीआई की ज़रूरत क्यों है? डाटा इज एन एसेट, एसेट से हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, वैल्यू लेनी है, उसके लिए हमें बीआई की ज़रूरत है। बीआई इज सम सॉर्ट ऑफ व्हाट इज द डाटा वेयर हाउस, जो कि ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि डाटा वेयर हाउस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी चीज़ें क्या हैं। की टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू डीडब्ल्यूएच आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से मुराद ये फैक्ट्स एंड डायमेंशन, उसकी की टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बनता किस तरह है। ओएलटीपी वर्सेस ओएलएपी ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, उसका कंपैरिजन भी बता दिया। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, डाटा मार्ट। ये आप लोगों ने गेस करनी है, व्हाट इज डाटा मार्ट। ये आप लोगों की तरफ मेरा क्वेश्चन है। हम इसी में ही कवर कर चुके हैं, जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डाटा मार्ट। आपने क्विक 1-2 मिनट लें, 1 मिनट लें, इस पर सोचें और मुझे बताएं व्हाट इज डाटा मार्ट। डाटा मार्ट और डाटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है, आप गूगल भी कर सकते हैं। चलें, मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है ना इनको रेफरेंस दें, इनसे कि अगले लेक्चर शुरू होने से पहले पूछें भाई अब डिफरेंस अब एक्सप्लोर करके आए हो तो क्या ठीक डिफरेंस है, है बताओ नेक्स्ट जरा। लेक्चर से ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप हाँ लोगों ने ये चीज ये नोट डाउन कर लें कि डाटा मार्ट क्या, ये आपने करके मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि डाटा मार्ट बिल्कुल। क्या होती है, ठीक है। और थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अच्छा अब अनिल मैं भाई। ना कंट्रोल, हाँ मैं अच्छा कंट्रोल जी। ले रहा हूँ, मैं कंट्रोल ले रहा हूँ बेसिकली। मुझे आप लोगों को मैंने कुछ लिंक शेयर किए हैं और एक ना डायग्राम शेयर किया है। ये सारे लिंक्स आप कॉपी कर लें और ख़ास तौर पे डायग्राम को जो है ना मैं शेयर करने लगा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये है। अच्छा अब ये मैंने ना अभी इसको खुद ही जो है ना इसको प्रिपेयर किया आप लोगों को समझाने के लिए कि लेमैन लैंग्वेज में कि हो क्या रहा है। अच्छा ये डायग्राम है ना पहले नहीं दिखा सकता था आपको, क्योंकि उस वक्त आपको अभी बिल्कुल ब्लैंक थे, अभी आपको हाफ पिक्चर क्लियर है।
कि चल क्या रहा है। आपके पास बिजनेस यूनिट है, ठीक है ना, जो बिजनेस कर रहा है। मैं कहता हूँ कि मैंने एक शॉप बनाई, ठीक है, मैंने एक शू शॉप बनाई और मैंने इन्वेंट्री ली, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने 10 किस्म के डिज़ाइन लिए शूज़ के, ठीक है, और मैंने उसको सेलिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। अभी यहाँ पे बात है, ठीक है, मैं स्टेज 1 के ऊपर हूँ। मैंने देखा कि मेरे पास विजिटर्स जो है ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले 10 थे, फिर 20 हुए, फिर 100 हो गए, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक शॉप की जगह 2 कर दिए। लेकिन मुझे पता चला कि अब मसला ये हो रहा है कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है मेरे शॉप के ऊपर, सेलिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन ये सेलिंग हो रही है, जिसकी विजिबिलिटी मुझे नहीं है, ठीक है। और मुझे पता है मेरा स्टाफ भी है, इवन कि मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत लॉयल है, लेकिन मुझे कैश की, ठीक है ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे उनकी टाइमिंग्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनकी लॉगिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेंट्री मैंने देखनी है कितनी है हर स्टोर के ऊपर, मुझे नहीं पता चल रहा। तो मैं बाहर गया, ठीक है, मैंने एक वेंडर ढूंढा, मैंने कहा कि मुझे एक वेंडर चाहिए जो कि मुझे एक एप्लीकेशन दे दे जो कि मैं अपने शॉप के ऊपर इंस्टॉल कर दूं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास बहुत किस्म के पॉज हैं, आप देख लें। मैंने एक पॉज सेलेक्ट किया और उस पॉज के ऊपर मैंने अपने पूरे शॉप को जो है ना ऑन बोर्ड किया, ठीक है। और मैंने कोई ईआरपी ले लिया, छोटा सा एक ईआरपी ले लिया जो कि ओएलटीपी मॉडल था। अब ओएलटीपी मॉडल क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे जब मैंने पॉज खरीदा तो मेरे पास जो बिहाइंड द सीन डेटाबेस था उसका मॉडल क्या था, वो एक ये मॉडल था, ये ईआरडी था, ठीक है। एप्लीकेशन का बैक एंड के ऊपर जो मॉडल हो सकता है वो ईआरपी ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ ईआरडी ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या है, वो बनाया ही नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में गया हुआ है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन स्टोर कर सके, जिस तरह मैंने अभी डायग्राम बनाया। तो मैंने एक ईआरपी लिया, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे टेबल्स थे, या मैंने उन टेबल्स को फिलअप किया, एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर किया। अब मेरी सारी सेलिंग हो रही है इस पॉज से, ठीक है। ये स्टेप 2 था जिसके अंदर मैंने ईआरपी जो भी आपका पॉज सिस्टम खरीदा है और मैंने अपना सारा सिस्टम कॉन्फ़िगर कर दिया। अब होता है क्या है कि जब शॉप से ट्रांजैक्शन गिरती है इस सिस्टम से होती होती आपके पास ईआरपी में चली जाती है, ठीक है, ये ईआरपी है। ये सारी स्टोरी है किसकी, ये है स्टोरी आपकी ओलैप की। यहाँ पे ओलैप खत्म हो जाता है, यहाँ पे आके आपके पास एप्लीकेशन है जो कि OLAP सपोर्ट या कर OLTP? ओएलटीपी, सॉरी, ओएलटीपी की ये सारी स्टोरी आपकी यहाँ खत्म हो जाती है। आपके पास बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर एक कोई भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, उसको एक डेटाबेस में स्टोर कर देती है जिसका मॉडल है ईआरडी बेस्ड, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है। और वो उसके अंदर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब मुझे वो बहुत ही बेसिक सी रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन मैं उसके ऊपर डीप एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उस पर डीप एनालिसिस करूंगा तो मेरे जो ट्रांजैक्शन सिस्टम जो हैं वो बैठ जाएंगे और वो सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि वो ट्रांजैक्शन उसके अंदर लॉग होनी है, उसकी लॉगिंग या तो वो उसे कहते हैं फेज आउट होंगे, या वो अवेलेबल नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं बिजी होंगे, क्योंकि इस तरफ से बहुत बड़ी क्यूरी आई होगी इन सिस्टम पे और वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही होगी। तो सारे डाटा साइंटिस्ट ने आज से 20 या 22 साल पहले, ठीक है, अराउंड 2000, ये सोचा कि भाई अब हमें ओएलटीपी सिस्टम से यानी कि ट्रांजैक्शनल सिस्टम से एनालिसिस सिस्टम को सेपरेट करना है। पहले होता यही था कि जितने भी ट्रांजैक्शन सिस्टम से उन पर डायरेक्ट क्यूरी जाती थी तो वो बैठ जाते थे, ठीक है। अच्छा, अब ये जब डिसाइड हो गया कि हमें सेम कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, वजह ये है कि जब मैं इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता हूं, यानी कि जब इसके ऊपर मैं इस मॉडल के ऊपर जब मैं क्यूरी करता था एनालिसिस की, तो मुझे बहुत ज्यादा डाटा को ज्वाइन करना पड़ता था, फिर एनालिसिस करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हमें एक नया मॉडल चाहिए जो कि डिफरेंट होगा लेकिन डाटा की कॉपी सेम होगी। तो वहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ डाटा वेयर हाउसिंग का,
कि हमें सेम कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि पहले ही ERPs में पड़ी है, इन सोर्सेज में पड़ी है, उसको यूं स्ट्रक्चर करो कि उनके ज्वाइंट्स कम कर दो, ताकि मुझे रिट्रीवल के वक्त ज्वाइन बहुत ज्यादा ना लगाने हो और वो फ्लैट पड़े हो, तो मैं उससे डाटा रिट्रीव कर सकूं और एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस कर सकूं। दिस वाज द बिगिनिंग जब हमने डाटा वेयर हाउसेस पे काम करना शुरू किया। इसके अंदर जो बेस्ट मॉडल बनाया जा सकता था उस वक्त, बहुत सारे मॉडल बने, जो बेस्ट मॉडल रिकमेंड हुआ उसे कहते हैं डायमेंशनल मॉडलिंग। ठीक है, उसमें होता ये है कि आपके पास ये जितने टेबल्स होते हैं जो मैंने अभी दिखाए हैं, इनको फ्लैट, वापस फ्लैट कर दिया, यानी डी नॉर्मलाइज कर दिया जाता है और उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में सेव कर दिया जाता है जो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग। ठीक है, अब वो क्या फॉर्म हो सकती है, लाइक इन सारे टेबल्स को अगर मैं ज्वाइन करके वापस 3 ही टेबल 4 ही टेबल बनाऊं, तो वो कहता है कि भाई ये बनेंगे टेबल्स, ये बना लो और इसके ऊपर एनालिसिस करो, क्योंकि इस पे ज्वाइन बहुत कम लगेंगे। उसके ऊपर तो आपके 25 ज्वाइन लगने थे, इस पे सिर्फ आपके 3 ज्वाइंस लगने हैं, तो इसलिए आपका एनालिसिस बहुत फास्ट होगा। तो सिमिलर उन्होंने फिर इस पे काम शुरू किया, आपका एक अलहदा डेटाबेस बनाया, उसी सर्वर के ऊपर, डेटाबेस सर्वर के ऊपर एक और डीबी बनाई गई, उस डीबी का मॉडल डायमेंशनल मॉडल रखा गया। ठीक है, उसके अंदर सेम ही डाटे को ETL करके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ETL, ये यहाँ से डाटा निकालना है, ट्रांसफॉर्म करना है, लोड वापस कर देना है एक डायमेंशनल मॉडल में। अगर यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको मैंने इमेज दिखाया है, ये डायमेंशनल मॉडल है, ये ERD है, दोनों बहुत डिफरेंट है। ये स्टार नजर आ रहा है, सेंटर में आपके पास फैक्ट पड़ा है और उसको डायमेंशन ने घेरा हुआ है स्टार की तरह। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं स्टार स्कीमा। ये है आपका ERD। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, ये है OLTP का डेटाबेस और ये है OLAP का डेटाबेस। ठीक है, दोनों के नाम डिफरेंट है, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन डाटा सेम है। अगेन मैं कह रहा हूँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है लेकिन डाटा सेम है। फिर जब ये एक दफा बन जाता है तो फिर उसके ऊपर आप कोई भी विजुअलाइजेशन, माइनिंग, ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट सेपरेट, ये अलहदा लोड होता रहेगा, ये कि रात के वक्त एक दफा लोड होगा और अब जिसने एनालिसिस करना होगा इस पे कर रहा होगा, जिसने क्विक रिपोर्टिंग करनी होगी जो कि एप्लीकेशन को ही चाहिए होगी वो यहाँ पे हो रही होगी, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एनालिटिक्स काम, डाटा साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे, डाटा एनालिस्ट काम कर रहे होंगे, इसके ऊपर सिर्फ डेटाबेस इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे। लाइक आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, क्यूरी लिखने वाले एक्सपर्ट होते हैं, SQL डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, वो इस पे काम कर रहे होते हैं, SQL डेवलपर्स इस पे भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं डाटा इंजीनियर्स, डाटा साइंटिस्ट, ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन जिन्होंने बनानी है थी वो काम कर रहे होते हैं। और ये एक सेपरेट लेयर है जो काम लोग ना डाटा इंजीनियरिंग कर सकते हैं ना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हम लोगों ने किस किस्म की विजुअल स्टोरी बनानी है। तो वो लोग लाइक स्टैट्स के बहुत सारे लोग होते हैं, स्टैटिशियंस होते हैं, ठीक है, एक्चुअरी के बहुत सारे लोग होते हैं, वो फिर इस लेयर में रहते हैं। उनको पता होता है कि डाटा पड़ा हुआ है, हमने इस लेयर में रह के सिर्फ डाटा को एक्सप्लोर करना है। तो ये यूं चल रहा होता है कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये एक जर्नी है जो कि आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और इस जर्नी के अंदर हर चीज वो लिखी हुई है जो कि एक डाटा इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट को, डाटा विजुअलाइजेशन इंजीनियर को चाहिए। और यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आपने जो है ना अपने स्ट्रॉन्ग करना है। इसके अंदर अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताए। मेरी आवाज आ रही थी ना आप लोगों को? जी सर, आ रही थी, क्लियर है काफी कुछ। परफेक्ट, आपको मैंने लिंक शेयर कर दी है। एक लिंक जो K1 की डाटा है, दिस इज हाईली रिकमेंडेड शॉर्ट कोर्स फॉर डाटा वेयर हाउसिंग। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए यहाँ से आपने पिकअप करने हैं और उसको अगेन, दिस इज समथिंग, मैंने ये जो पूरा कोर्स किया, इट्स इट्स मोर ऑफ ए सेल्फ लर्निंग। मैं आपको 40% सिर्फ जो बता रहा हूँ वो आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ, इट्स अ सेल्फ लर्निंग थिंग। आपको बता दिया गया है, ये सारी जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं हमने बड़ी मुश्किलों से एक्सप्लोर की हैं, ठीक है।
और हमें टाइम लगा एक्सप्लोर, आपने बस उनको जाके रिविजिट करना है चीज़ों को, आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आगे इनको पढ़ें, इसको जो है ना लर्न करें। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जरूर जो है ना उस क्वेश्चन रेज किया करें, क्योंकि मुझे पूरे दिन में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में कम है, काफी कम है। तो दैट्स इट फ्रॉम द टूडेज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप ऐसा करें कि मुझे जो है ना हम लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay, thank you, Dafis.